का कौन सा प्रोफेशन है, दूसरा आप लोग कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ रहे हो, एंड thirdly, are you guys on a scale of 1 to 10, how much are you interested to pursue your higher secondary education in China? So these are my three questions. Your degree, आप कौन सी डिग्री कर रहे हो, बैचलर्स कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, लेकिन कौन सी आपका प्रोफेशन क्या है, कौन सी फील्ड के अंदर कर रहे हो, इन विच यूनिवर्सिटी, and on a scale of 1 to 10, how much are you really interested to pursue your higher education in China? It could be your masters, it could be your PhD, or it could be your postdoc as well. जिसे हम लोग कहते हैं ना पोस्ट डॉक्टरेट. इस सेशन को I will be making two-way communication. It is because I believe like this session can be in best manner delivered as in terms of discussion. मैं सिर्फ और सिर्फ मैं ना बोलता जाऊं बल्कि मैं आप लोगों की भी सुनूं. So that's fine. If you are really hesitant to properly communicate by opening your mic, अगर आप लोग अभी भी हिचकिचाते हो तो it doesn't matter. आप chat box के अंदर भी communicate कर सकते हो. So I just want to know. Okay, A level, aerospace, renewable energy. Miss Sharma, you have to kindly mute your mic. Saifan, can you mute Miss Sharma's mic? Okay, recent MS graduate from NIST in career counseling and education. It's great. Miss Afreen कह रही है कि taking all sciences and interested in pursuing medicine, studying in KGS, looking forward on a scale of 8 to 9. Great. मास्टर्स के भी हमारे पास यहाँ पे ग्रेजुएट हैं और PhD भी कर रहे हैं जो कि मेडिसिन के अंदर. I am studying my profession. I am applying for university right now. Applied in NIST GK. Miss Hamna, can you please mute your mic? Okay, Miss Fine कह रही हैं BS clinical psychology student, third semester UMT on a scale. I would say I'm actually not sure whether I should pursue. No worries, no worries, no worries. आपकी हम लोग confusion को clear करना चाहेंगे. Bahria, I'm interested in music. Okay, so mostly यहाँ पे हमारे पास जो students हैं, either they are now doing their A levels, either they are now choosing the right university for bachelors, or either they are in their masters और वो masters कर चुके हैं mostly. जहाँ तक अभी मुझे सुनने में आया है. Miss Amna, could you please mute your mic? Thank you so much. अच्छा, and right now एक हमारे पास और स्टूडेंट है जो कह रहे हैं कि हम बिजनेस में करना चाह रहे हैं. Okay, so it's perfecto. So right now let's just move forward. मैंने आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानना चाहता था, and thank you so much for giving me your introduction कि आप लोग किस फील्ड में इंटरेस्टेड हो और अभी आप लोग क्या कर रहे हो. And I'm really proud and I really wish कि आपको वो सभी मिले जिसके लिए आप लोग इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो. So right now, who am I? I'm Mohammad Daniel Kamal. I am right now a master's researcher in Xi'an Jiaotong University. जिस तरीके से आपको साइफान ने बता दिया था, एनडी बुराक ने. I'm the secretary of SDGs at the Burak Association, and also I represented Pakistan at the United Nations Forum, जिसके अंदर एक जो है वो UNCCD था और दूसरा अभी हमारे पास UN की एक SB64 कॉन्फ्रेंस थी. And basically, by profession, I am an environmental scientist, and all my research, all my studies is regarding environment and climate change. So that's why. अच्छा, अब अगर हम बढ़े तो सबसे पहला सवाल यही होता है एक स्टूडेंट का कि हम किस यूनिवर्सिटी के अंदर जाएं आफ्टर हैविंग देयर एफएससी और आफ्टर हैविंग देयर ए लेवल्स या ओ लेवल्स ओ ए लेवल सॉरी. तो उसके लिए मोस्टली हम लोग ये कहते हैं सारे के सारे कि आपकी जो बैचलर्स होनी चाहिए वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए. इट डजंट मैटर कि वो पब्लिक है या वो प्राइवेट है. जो चीज़ मैटर करती है वो मैटर करती है कि आपका इंटरेस्ट उस फील्ड के अंदर कितना ज़्यादा है जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो. कंप्यूटर साइंसेज के लिए हमारे पास टॉप की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इट्स कॉमसेट, इट्स फास्ट. इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास नस्ट आ जाती है और साथ ही साथ आपके पास जो यूईटी आ जाती है. अगर हम बिजनेस के अंदर देखें तो फिर वो आपके पास आईबीए लम्स है. अगर हम मेडिसिन के अंदर देखें तो आपको पता है कि आपके पास मेडिकल कॉलेजेस पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे हैं.
एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स, अगर आप साइकोलॉजी के अंदर देखते हो या अगर आप बाकी फील्ड्स के अंदर देखते हो, उसके अंदर आपके पास टॉप की यूनिवर्सिटीज आती हैं। आपके पास कायदे आजम आएगी, आपके पास नस्ट आएगी, कायदे आजम के बाद, नस्ट के बाद आपके पास जो आती हैं वो आती हैं कॉमसेट्स आती है। कॉमसेट्स के साथ ही साथ आपके पास लाहौर के अंदर अभी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर आ रही है, पंजाब यूनिवर्सिटी इज ग्रेट। और अगर आप वैसे देखना चाहो कि इफ यू आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड टू परस्यू योर डिग्री इन पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी को देखो, तो फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज आई वुड रादर सजेस्ट यू टू प्लीज फोकस ऑन कायदे आजम यूनिवर्सिटी एंड पंजाब यूनिवर्सिटी। क्योंकि जब आप आगे के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके अंदर आपके पास यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। और यूनिवर्सिटीज की भी रैंकिंग के साथ साथ आपके पास जो मैटर करता है वो मैटर करता है कि वहां पर जो असल में प्रोफेसर हैं वो कहाँ से अपनी पीएचडीज करके आए हैं, या उनका एक तरीके से पढ़ाने का कैलिबर या एक्सपीरियंस कितना ज्यादा है। If I tell you about me, so I did my bachelor's in environmental sciences from Quaid-e-Azam University. Quaid-e-Azam University is in Islamabad, and it is ranked #1 by HEC in all over the public universities. And वैसे भी अगर HEC के ranking देखें तो उसके अंदर Quaid-e-Azam #1 पे है. When I was properly selecting the universities, अगर मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं तो I only applied in 2 universities. मैंने सिर्फ और सिर्फ Quaid-e-Azam में अप्लाई किया था और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। कायदे आज़म में जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपके पास उस वक्त जब मुझे इल्म था तो वो था कि यू कैन ओनली अप्लाई इन 3 प्रोफेशंस एट वन टाइम। आपके एडमिशन लेटर के अंदर जब अप्लाई कर रहे होते हो, एडमिशन आप दे रहे होते हो एप्लीकेशन फॉर्म, और पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आप उस वक्त अप्लाई कर सकते थे 4 to 5 डिफरेंट प्रोफेशन के अंदर एट वन टाइम। आपकी जो एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता था वो, एंड उसके अंदर फिर जब आपकी रैंकिंग आती थी तो वो रैंकिंग आती थी बाय मेरिट, और उसके अंदर भी ये देखा जाता था कि आपके जो नंबर आ रहे हैं, आपका जो नाम आ रहा है वो पहले पहले किस उसमें आ रहे, प्रोफेशन में आ रहे हैं। एंड जब कायदे आज़म में अप्लाई कर रहे होते हो तो उसके अंदर आप अपनी जो आपका फेवरेट प्रोफेशन होता है आप उसको #1 पे रखते हो, फिर #2 पे रखते हो, फिर #3 पे रखते हो। फॉर मी जो मेरी टॉपेस्ट प्रायोरिटी थी उस वक्त, इट वाज माइक्रोबायोलॉजी, देन इट वाज साइकोलॉजी, एंड देन इट वाज एनवायरमेंटल साइंस। अच्छा, अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो हैरान मत होना, I was just mostly interested and invested in microbiology और एक तरीके से psychology. I was not that much interested, और मुझे इस चीज का पता भी नहीं था कि environmental science भी हमारे पास एक ऐसी फील्ड है जो कि एग्जिस्ट करती है। For me, जो मैं अभी यहाँ तक पहुंचा हूँ इसके अंदर I will give credit to one of my dearest apis. She graduated and she did her MPhil in zoology from Qaid-e-Azam University, and she said like she really helped me in my registration properly process. And she said like, Daniel, you should also apply in environmental sciences. It is a new field and it is an emerging field, and इसका जो आपको स्कोप है वो आगे जाके 10-15 सालों के बाद मिलेगा। So then I usually got introduced by her to environmental science, and then I usually applied. So यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के अंदर आपके पास रैंकिंग मैटर करती है, रैंकिंग के साथ प्रोफेसर्स कौन कौन से हैं, एंड देन आपके इंटरेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप ये भी देखो कि फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना चाह रहे हो तो कौन कौन सी कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज टॉप पे है पाकिस्तान के अंदर, बिजनेस के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज टॉप पर है, साइकोलॉजी के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटीज टॉप पर है। साइकोलॉजी के अलावा लेट्स सपोज अगर हमारे पास नेचुरल साइंसेज के शोबे हैं या आईआर है या एक तरीके से पब्लिक साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या पॉलिटिकल साइंस है, तो कौन से यूनिवर्सिटीज हैं जो कि टॉप पर हैं। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी टॉप पर होती है अमूमन वहां पर ये देखा जाता है कि प्रोफेसर कहाँ से आ रहे हैं, उनकी पीएचडीज कहाँ से एंड उनके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो दिस इज माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू जो कि अभी आप पढ़ रहे हो एंड अभी आप कंफ्यूज अगर होगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको चुननी है, तो उसके लिए भी ये देखना। तो इफ यू मूव फॉरवर्ड, तो व्हाई चूजिंग द राइट यूनिवर्सिटीज मैटर इन चाइना, कि अगर आप चाइना के अंदर आ रहे हो, आपकी बैचलर्स हो चुकी है इंशाल्लाह आगे आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर, तो राइट नाउ और उस वक्त आपकी ग्रेजुएशन के फौरन 3 से 4 महीनों के अंदर आपको क्यों प्रॉपर्ली देखना पड़ेगा या तयन करना पड़ेगा। चाइना के अंदर अगर मैं वैसे बताऊं तो सबसे पहले आपके पास मैटर करती है इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी, कि वो सारी की सारी यूनिवर्सिटी जो चाइना के अंदर है एंड टॉप टियर यूनिवर्सिटीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सिटी जो कि लो टियर है या जो कि मिडिल टियर के अंदर, वो ऑफिशियली जो टॉप टियर यूनिवर्सिटीज हैं उनकी डिग्रीज अगर आप वहां से ग्रेजुएट होते हो
वो रिकग्नाइज हो रही हैं बाय पाकिस्तानी टॉप टियर कंपनीज, जिसके अंदर आपके पास कंस्ट्रक्शन कंपनीज आती हैं, आपके पास पेट्रोलियम कंपनीज आती हैं, आपके पास बिजनेस के अंदर जो आपके पास टाइकून्स की कंपनीज आती हैं वो आती हैं, आपके पास डिफरेंट मेडिसिन और रिसर्च के इंस्टीट्यूट्स आते हैं, और अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तानी कंपनीज आपके पास गल्फ कंपनीज भी आती हैं। अब गल्फ के अंदर आपके पास बहुत ज्यादा मार्केट मार्जिन है आपके पास, और एक तरीके से ये कहा जाता है कि गल्फ के अंदर आपको अगर शॉर्ट टर्म शॉर्ट टाइम के स्पेन के अंदर आपको पैसा कमाना है तो यू शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर गल्फ कंपनीज। और फिर आपके पास बाकी ग्लोबल फर्म्स भी आ जाती हैं। उसके बाद आपके पास आते हैं बेटर जॉब प्लेसमेंट्स। चाइना से जब आप मास्टर्स करते हो, ग्रेजुएट एक तरीके से पीएचडी करते हो, तो आपके पास जॉब प्लेसमेंट्स आती हैं मोस्ट प्रोबेबली एंड मोस्ट सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर, इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर और रिसर्च सेक्टर्स के अंदर। एंड रिसर्च के अंदर भी इट्स मोस्टली लाइक इट कुड बी एनी फील्ड। उसके बाद आप एलुमनाई नेटवर्क्स के साथ कनेक्ट होते हो, वो एलुमनाई नेटवर्क्स जो कि वहाँ उस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके होते हैं एंड उन्होंने अपनी अपनी कंपनीज खोली होती हैं, चाहे वो बेशक चाइना के अंदर हो या चाहे वो बेशक उन्होंने अपने कंट्रीज के अंदर खोली हो। एंड वहां पर भी आप उनके साथ कनेक्ट होकर अपनी पोजीशंस को सिक्योर कर सकते हो। आप उनके साथ जब कनेक्ट होगे तो आप ये कह सकते हो कि मैं चाइना के अंदर आपकी कंपनी के साथ आपका एम्प्लॉय हो सकता हूँ, या फिर मैं पाकिस्तान जाकर आपकी कंपनी वहां पे खोलने की कोशिश कर सकता हूँ, या फिर जो कंपनी आपकी पाकिस्तान में खुली हुई है मैं वहां पर जाके काम कर सकता हूँ। ये होता है। और चाइना के अंदर ये चीज है कि जो टॉप C9 लीग की यूनिवर्सिटीज होती हैं मोस्टली वहां पर जॉब फेयर्स लगते हैं हर सेमेस्टर के अंदर। सो बेसिकली इफ यू आर हियर फॉर डूइंग योर मास्टर्स और आप यहाँ पे 2 सालों के लिए, तो आपको 4 जॉब फेयर्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट 2 जॉब फेयर्स में आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में होते हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके लास्ट 2 जॉब फेयर्स होते हैं उसके अंदर आप अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, फर्स्ट 2 में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फर्स्ट 2 के अंदर आप अपनी प्रॉपरली कोर्सेज के ऊपर काम कर रहे होते हो, आप रिसर्च वर्क को थोड़ा सा पॉलिश करना चाह रहे होते हो। सो इन द फर्स्ट ईयर यू कैन नॉट अप्लाई इन द जॉब फेयर्स, बट इन योर लास्ट ईयर यू कैन अप्लाई इन द जॉब फेयर्स। उस जॉब फेयर्स के अंदर चाइना की पूरी एक तरीके से आप ये कह लें कि पूरे चाइना से टॉप की 400 टॉप की 300 कंपनीज आती हैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर, और उस यूनिवर्सिटी के अंदर जब आती हैं तो एक तरीके से वो हर जगह से सीरीज ले रही होती है, वो हर जगह से रेज्यूमेज ले रही होते हैं। अगर मैं आपको शियान जाता हूँ बताऊं तो आई अटेंडेड लास्ट हमारा जो सेकंड सेमेस्टर, आई जस्ट कंप्लीटेड माय फर्स्ट ईयर, सो टेक्निकली आई कंप्लीटेड माय सेकंड सेमेस्टर के अंदर एक जॉब फेयर हो रहा था। एंड वहां पर हर फील्ड से आ रहे थे, वहां पे बिजनेस की कंपनीज आ रही थी, वहां पे टेक्नोलॉजी की कंपनीज आ रही थी, वहां पे एक तरीके से एनवायरमेंट की कंपनीज आ रही थी, आपको बैंकिंग की कंपनीज बैंक्स देखने को मिल रहे थे, और आपको एक तरीके से मेडिसिन की कंपनीज आ रही थी, कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड कंपनीज आ रही थी, आपके पास आईटी की कंपनीज आ रही थी। एंड वो कंपनीज एक तरीके से वो कंपनीज हैं जो कि आइदर उनके ऑफिसेज चाइना के अंदर, यहाँ शंघाई के अंदर होंगे, शियान के अंदर होंगे, बीजिंग के अंदर होंगे, या फिर एक तरीके से उनके कंपनीज के ऑफिसेज अपार्ट फ्रॉम चाइना बाकी कंट्रीज के अंदर भी होंगी। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो एक कंपनी थी इन्वायरमेंट से ही थी, बट उनकी जो ऑफिस थे वो थाईलैंड के अंदर थे, वो मलेशिया के अंदर थे, इंडोनेशिया के अंदर थे, वियतनाम के अंदर थे। सो एक तरीके से आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। और व्हाई इट मैटर्स फॉर पाकिस्तान कि अगर आप बेशक वापिस आना चाहते हो या अगर आप एक तरीके से अब्रॉड के अंदर काम करना चाहते हो, तो आपकी इस चाइना के अंदर उस यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन भी डायरेक्टली अफेक्ट करती है आपकी सैलरी को या अपॉर्चुनिटीज को। एक चीज आपको मैं प्लस पॉइंट दे दूं कि जब आप चाइना में अप्लाई कर रहे होते हो एंड आफ्टर योर ग्रेजुएशन आपके पास एक लिस्ट भी शेयर होती है, वो ड्यूरिंग द डिग्री होती है, आफ्टर योर ग्रेजुएशन होती है, डिपेंड्स ऑन योर सीनियर्स एज वेल। उस उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको ये बता दिया जाता है कि लेट्स सपोज अगर आप शियान जाओताओं के ग्रेजुएट हो रहे हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी, बेशक वो कोई भी फील्ड हो, कौन सी आपकी मिनिमम सैलरी कितनी होगी ये बताया जाता है उस डॉक्यूमेंट के अंदर। या अगर आप एक तरीके से चाइना की नंबर 1 यूनिवर्सिटी से मास्टर ग्रेजुएट करें तो उसके अंदर आपकी बेसिक सैलरी कितनी होगी। अगर मैं आपको शान बताऊं तो हमारे पास जो बेसिक सैलरी है दैट इज अराउंड 13,000 RMB, एंड 1 RMB राइट नाउ इज इक्वल टू 43 रुपी PKR। सो अगर आप देखो 1 RMB इज इक्वल टू 43 रुपी, सो 13,000 मल्टीप्लाई बाय 43, ये आपके पास आंसर आ जाएगा इन PKR। एंड इन ऑर्डर टू प्रॉपर्ली लिव अ वेरी गुड लाइफ इन चाइना, अगर आप अच्छे आपने ग्रेजुएट हो गया, आप जॉब कर रहे हो चाइना के अंदर, तो जस्ट 2,000 इज एनफ फॉर सिंगल पर्सन। अगर आप स्टूडेंट हो तो 1,000 RMB इज एनफ फ्रॉम योर स्कॉलरशिप।
अच्छा, अब हम अगर हम इसके अलावा भी देखें तो आपके पास एक तरीके से क्या आपको स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं, आपको वो प्रोवाइड करती हैं अच्छे सुपरवाइजर्स आपकी फील्ड के अंदर, वो सुपरवाइजर्स जिनके पास अच्छी अच्छी पब्लिकेशंस हैं, जो प्रॉपर्ली एक्सपीरियंसड है। आपको चाइना प्रोवाइड करेगा बेटर लैब फैसिलिटीज, पाकिस्तान से तो बहुत अच्छी प्रोवाइड करेगा, मैं ये दावे से कह सकता हूँ, और अच्छे से अच्छे रिसर्च रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। आप कोलैबोरेट कर सकोगे इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ। हर यूनिवर्सिटी के अंदर उसकी अपनी फील्ड के रिगार्डिंग एक रिसर्च इंस्टीट्यूट मौजूद होगा। फॉर एग्जाम्पल इन शियान, अपार्ट बी इट एनी आपके लिए फील्ड, आपको एक रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलेगा। एंड फिर आप एक तरीके से अपन यहाँ पर फोकस होता है कि यू शुड ऑल्सो पब्लिश योर पेपर्स, आप अपनी रिसर्च को भी पब्लिश करो। इट डिपेंड्स ऑन यू। एंड फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स लाइक फॉर मी एंड फॉर अदर्स, आपकी जो रिसर्च आउटपुट है वो मैटर इसलिए करती है क्योंकि जब आप एक पेपर पब्लिश करते हो तो आपके पास पोस्ट डॉक या फैकल्टी पोजीशंस अवेलेबल हो जाती हैं। आप चाइना में भी अप्लाई कर सकते हो एज प्रोफेसर्स, या आप एक तरीके से किसी और कंट्री के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो एज प्रोफेसर्स। उसके बाद के ये जो टॉप यूनिवर्सिटीज होती हैं ये आपको पार्टनरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, किसके साथ? लीडिंग टेक कंपनीज के साथ। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी हवावे, इट कुड बी BYD, इट कुड बी अलीबाबा, इट कुड बी एक तरीके से आपका अमेजोन हो गया, इट कुड बी एनी कंपनी जो कि बेशक इन चाइना है या बेशक आउट ऑफ चाइना है। उसके बाद आप एक्सेस भी कर सकते हो इंटर्नशिप्स पूरे पूरे आपकी स्टडी के दौरान। एंड चाइना के अंदर आपको जो इंटर्नशिप्स मिल रही होती हैं, दीज इंटर्नशिप्स आर पेड इंटर्नशिप्स। एंड यस, एक तरीके से जो आपको वो मिल रहा होता है ना पेड इंटर्नशिप का स्टाइपेंड, इट्स रियली गुड, इट्स रियली 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 गुड। और फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको गेस्ट लेक्चर्स देखने को मिलते हैं जो कि इंडस्ट्री के लीडर्स कर रही होती हैं, जो कि डिफरेंट लीडिंग टेक कंपनीज या डिफरेंट टॉप रिनाउंड कंपनीज से वो आते हैं, एलुमनाई आते हैं, वो एक तरीके से गेस्ट लेक्चर्स दे रहे होते हैं। एंड यस, इट प्रोवाइड्स यू अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जिसके अंदर आप एक तरीके से वैल्यू हो रहे होते हो। अगर मैं वैसे प्रोग्राम क्वालिटी बताऊं तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए देयर आर लॉट ऑफ इंग्लिश टॉप प्रोग्राम्स, लेकिन हम उसको थोड़ा सा आगे बात करेंगे। एंड क्वालिटी यूनिवर्सिटी से क्यों मैटर करती है? क्योंकि इसलिए मैटर करती है कि आप नेटवर्किंग कर रही होती हो हाई कैलिबर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ। इट इज नॉट जस्ट यू जो कि पाकिस्तान से आया, देयर आर अदर नेशंस, वहां पे डिफरेंट मुल्कों से भी लोग आ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यूरोपियन यूनियन के लोगों से नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा। इन शियान where I am studying, मैं आपको अपना ही बताऊंगा क्योंकि right now I am just observing and I am networking. I usually get in contact with the students from Italy, the students from Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, इटली के अलावा मोरक्को हो गया। आपके मोरक्को के साथ साथ आपके पास डिफरेंट अफ्रीकन नेशंस भी आ जाती हैं। अफ्रीकन नेशंस के साथ आपके पास यूरोपियन यूनियन के अलावा स्पेन हो गया, पोर्टुगाल हो गया, वहां से भी आते हैं आपके पास स्टूडेंट्स। तो आप ये ना समझो कि चाइना के अंदर सिर्फ एशियन या अफ्रीकन नेशंस के स्टूडेंट आते हैं, आपके पास यूरोपियन यूनियन के भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। एंड आई जस्ट क्वेश्चन वन यूरोपियन यूनियन की एक स्टूडेंट से कि व्हाई डू यू यूजुअली सिलेक्ट चाइना? शी सेड लाइक फॉर अस द यूरोपियन द स्टडी इन यूरोप इट्स वेरी मच प्रॉपर्ली फोकस्ड ऑन टेक्स्ट, कि वो थ्योरेटिकल ज्यादा फोकस है। एंड दे जस्ट वांटेड कि हम एक तरीके से जो मास्टर्स करें या हमारी जो रिसर्च हम लोग जो प्रॉपर्ली मास्टर्स करें वो रिसर्च ओरिएंटेड हो। एंड चाइना के अंदर रिसर्च ओरिएंटेड हमारे पास काम हो रहा होता है, तो हम इसलिए स्विच करना चाह रहे थे कि चाइना का हम लोग प्रॉपर्ली रुक करें। तो दैट्स व्हाई द क्वालिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी इट रियली मैटर्स। सो इफ यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब कि बिफोर इट इज टू लेट, आइडेंटिफाई व्हाट यू लव एंड योर फ्यूचर एस्पिरेशंस। आप प्रॉपर्ली प्लान करो और केयरफुली प्लान करो कि किस तरीके से आपने कौन सा पाथ को चूज करना है, आपने कौन से पाथवे पे काम करना है। अच्छा, जब हम पाथवे की बात कर रहे होते हैं तो आपको डिफरेंट एंड वेरियस एस्पेक्ट्स को देखना पड़ता है। फर्स्टली आप एक तरीके से अपने आप से ये सवाल पूछो कि मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर अपने स्कूल टाइम के अंदर, अपने कॉलेज लाइफ के अंदर, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पाया था, कौन कौन से टॉपिक्स मुझे इंटरेस्ट जगाते हैं, कौन कौन से उन टॉपिक्स के अंदर जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है मैं उनको हल करने की कैपेबिलिटी रखता हूँ। अच्छा, मेरे पास एनालिटिकल स्किल्स ज्यादा है, मेरे पास एक्सपीरियंस हैंड्स ऑन ज्यादा है, या मैं ज्यादातर क्रिएटिविटी की तरफ जाता हूँ। लाइक एक तरीके से फॉर एग्जांपल मी, एम आई ए रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन, am I a person who is more capable and more advanced in hands-on experience for like industry sector के तरफ ज्यादा, या मैं वो पर्सन हूँ जो कि एक तरीके से काम ऐसे
फोकस करता है कि मैं नॉवल अप्रोच की तरफ जाऊं, मैं एक ऐसी रिसर्च करूं या मैं एक ऐसी प्रॉब्लम को हल करूं जिसका पूरी दुनिया के अंदर अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं आया। सो यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू क्वेश्चन दीस फ्रॉम योरसेल्फ, क्योंकि जब आप अपने से ये पूरे के पूरे सवालात का आपके लिए पूछते हो तो आपके पास डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। आप एक तरीके से अपना माइंड सेटअप कर रहे होते हो, आप अपने माइंड को सेटअप इसलिए करना चाहते हो क्योंकि दीज क्वेश्चंस विल प्रॉपरली हेल्प यू कि आप एक तरीके से प्रॉपरली डिग्री का चुनाव करो, और डिग्री के चुनाव के साथ भी यूनिवर्सिटी का चुनाव करो। उसके बाद फिर आप अपना वर्क स्टाइल देखो। वर्क स्टाइल के अंदर ये है कि आइदर यू यूली प्रेफर कि आप टीम के साथ काम करना चाहते हो या आप वर्क अलोन करना चाहते हो, आप एक नई चीज बनाना चाहते हो या आप इम्प्रूव करना चाहते हो एग्जिस्टिंग चीजों को, आप एक तरीके से इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा काम करना चाहते हो, आप स्टार्टअप के अंदर ज्यादा काम करना चाहते हो या आप एकेडेमिया के अंदर ज्यादा काम करना चाहते हो। तो ये आपके पास चीजें आपको पूछनी पड़ेंगी अपने आप से। अच्छा, फिर हमारे पास कॉमन पाथवेज क्या है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए? पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास कॉमन पाथवेज हैं कि टेक इंडस्ट्री लीडर, बेस्ट डिग्री अगर टेक इंडस्ट्री लीडर के लिए कौन सी है, ये प्लीज आप नोट डाउन करते जाओ, ये आप लोगों के लिए है। तो प्लीज 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 जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लोगों के लिए, तो इट्स बेटर टू नोट डाउन। टेक इंडस्ट्री लीडर अगर आपके पास एक एस्पिरेशन है तो बेस्ट डिग्री आप लोगों के लिए चाइना के अंदर होगी मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस या एआई। और चाइना ही क्यों? तो चाइना जो है वो एआई को लीड कर रहा है और टेक इनोवेशन के अंदर कारआमद साबित हो रहा है। इसका सबूत, इफ यू नो मुरु, मुरु को भी जानते हैं? मुरु, MOORO। मुरु इज अ फेमस पाकिस्तानी यूट्यूबर। उनका जो पूरा नाम है वो है तैमूर सलाहुद्दीन। एंड अगर आप उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर जाओगे तो वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 से 4 महीने पहले उनकी एक वीडियो पब्लिश हुई थी जिसके अंदर उन्होंने प्रॉपर्ली कंपेयर किया था चाइना वर्सेस यूएसए। एंड देन ही लिस्टेड, एंड उन्होंने प्रॉपर्ली बताया था कि चाइना कितना ज्यादा आगे बढ़ चुका है टेक्नोलॉजी के मामले में, एआई के मामले में, यूएस के मुकाबले में। सो वहां से भी आपको पता चल जाएगा कि आप चाइना को क्यों अडॉप्ट करना चाहते हैं, क्यों अपनाना चाहते हो। अगर आप रिसर्च साइंटिस्ट हो, उसकी इंस्पिरेशन लेना चाहते हो, तो आपके लिए जो बेस्ट डिग्री होगी वो होगी पीएचडी स्टेम के अंदर। स्टेम के अंदर ही क्यों? क्योंकि चाइना जो है वो वर्ल्ड क्लास लैब्स प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ फंडिंग आपको प्रोवाइड करता है। बिजनेस के लिहाज से एमबीए या एमएस इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा अच्छा है, बिजनेस इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगा, और दूसरा आपको मैन्युफैक्चरिंग नॉलेज प्रोवाइड करेगा। इधर भी मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, कुछ पाकिस्तान से हैं और कुछ सूडान से हैं जो कि एमबीए कर रहे हैं। एंड उनकी जो सूडान से हैं तो उनकी डुअल डिग्री है, वो दूसरी दफा मास्टर्स कर रहे हैं। फर्स्ट उनकी इफ आई एम नॉट रॉन्ग आईटी के अंदर थी, एंड नाउ ही इज डूइंग हिज एमबीए बिजनेस के अंदर। उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के लिए पीएचडी प्रेफर की जाती है कि आप पीएचडी करो अपनी फील्ड के अंदर। इंजीनियर हैं तो आप एमएस इंजीनियरिंग करो, और अगर आप डेटा साइंटिस्ट हो तो आप डेटा साइंस के अंदर मास्टर्स करो या फिर एआई के अंदर मास्टर्स करो, क्योंकि चाइना जो है वो बहुत बड़ी बड़ी डेटा एप्लीकेशन बना रहा है। और साथ ही साथ अपनी स्ट्रेंथ को असेस करो। आप ये देखो कि आप किस आप कह लो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी क्वालिटी आपके अंदर सबसे ज्यादा अच्छी है, दूसरे आपको किस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, how are you being recognized? Are you being recognized as a leader? Are you being recognized as a tech person? Are you being recognized as a public influential person? या एक तरीके से वो पर्सन जो कि प्रॉपरली कोऑपरेटिव है, काम कर सकता है एंड लोगों को एक साथ लेकर चलता है। एंड आप ये देखो कि आप अगर कोडिंग पसंद करते हो तो आप अगर कैलकुलस के अंदर स्ट्रगल कर रहे हो तो आप डेटा साइंस को चूज करो रादर देन थ्योरेटिकल फिजिक्स। अगर आप पीपल ओरिएंटेड पर्सन हो तो आप एमबीए को फोकस करो, ना सिर्फ आप प्योर रिसर्च को फोकस करो। अगर आपको चीजों को बनाने में इंटरेस्ट है तो आप इंजीनियरिंग को फोकस करो, ना सिर्फ आप बिजनेस एनालिसिस को देखो। आपको ये चीज भी देखनी पड़ेगी। और दूसरी बात, आप ट्रेंड्स को फॉलो मत करो। ट्रेंड्स के अंदर फिर ये आता है कि वो ये कर रहा है तो मैं भी ये करूं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम डूइंग एनवायरमेंट, सो यू गाइज डू नॉट फॉलो मी कि अगर ये कर रहा है तो मैं इसको फॉलो करूं। या आजकल के अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा फील्ड्स आती हैं जो कि फोकस कर रही होती हैं। एआई उसका एक हमारे पास एग्जांपल है जो कि बहुत अच्छी तरीके से फील कर रही है। एक एमर्जिंग फील्ड है कि आपको एआई जो है वो इस दौर में मिलेगा। आपको एआई 20 साल के बाद भी लोग इसके ऊपर बात करेंगे, कर रहे होंगे। एंड एआई इज जस्ट द स्टार्ट, तो आप उसको भी देखो। आप
डिफरेंट पाकिस्तानी अलमनाई से कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू। आप उनसे उनके डेली एक्चुअल डेली एक्सपीरियंसेस के ऊपर बात करो। आप उनसे उनके ये पूछो कि आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन व्हाट डिड यू अचीव। आपने जॉब लैंड की, आपने पीएचडी के अंदर एडमिशन लिया, आपने पोस्ट डॉक्टरेट का फैसला किया, आपने पढ़ाने का फैसला किया, या एक तरीके से आप किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर हो, तो आप कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर हो। आप चाइना के अंदर ही रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर हो, या आप किसी कैनेडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर हो, यूएस के रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर हो, या किसी और रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर हो। और ये जो आपने इतना ज्यादा अचीव कर लिया, तो आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस आए, ठीक है। ये आप उनसे पूछो, लाजमी पूछो, क्योंकि एक तरीके से वो आपको गाइड कर सकते हैं आपकी फील्ड के अंदर। दे आर द बेस्ट। उन्होंने तो अचीव कर लिया, उनके पास एक्सपीरियंस हो गया, एंड दे हैव स्टार्टेड टू अर्न प्रॉफिट। एंड वो यही चाहेंगे कि उनके कंट्री से जो लोग हैं वो भी इस चीज के अंदर आए, वो आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे। फिर आप ये देखो कि आपकी जो जॉब मार्केट है उसके अंदर कौन कौन सी जॉब एग्जिस्ट कर रही है पाकिस्तान के अंदर, बाहर कंपनीज किस तरीके से पे कर रही हैं, कंपनीज हायर भी कर रही हैं, सिर्फ आउटसोर्स कर रही हैं, और 5 साल के बाद इसकी क्या वैल्यू होगी, क्या डिमांड होगी। एंड यस, यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी, लेकिन हम उसको थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब अगर हम मजीद आगे बढ़े तो हमारे पास एक और चीज आती है कि आप, सॉरी ये हो गया रिसर्च यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस। देखो रिसर्च यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस क्यों मैटर करती है, तो हमारे पास डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आते चले जाएंगे, एंड दीज आर द पॉइंट्स दैट आई लिस्टेड। एंड ये हमारे पास वैसे तो कुछ बेसिक्स हैं, लेकिन इनको आप फोकस करो। आप ये देखो कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, स्कॉलरशिप अवेलेबिलिटी कितनी है, लाइक वो यूनिवर्सिटी कितनी ज्यादा स्कॉलरशिप आपको ऑफर कर रही है, स्पेसिफिक प्रोग्राम क्वालिटी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी यूनिवर्सिटी बेशक चाइना के अंदर नंबर 1 है, लेकिन वो जिसके अंदर आप अप्लाई करना चाहते हो चाइना के अंदर उसकी क्या रैंकिंग है, वर्ल्ड वाइड उसकी क्या रैंकिंग है उस प्रोग्राम की। आपको मैं एग्जांपल दूं तो शानजाताओ बेशक चाइना के अंदर वो C9 लीग का पार्ट है, इट्स इन टॉप 9, लेकिन वो टॉप फर्स्ट नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट ऑन नंबर 1। या फिर अगर हम शंघाई रैंकिंग देखें तो रैंकिंग के अंदर भी वो टॉप 10 पे है, ठीक है। हमारे पास चाइना के अंदर 2 रैंकिंग होती है, लेकिन हम उसको बाद में देखेंगे। तो रैंकिंग तो मुझे पता चल गई, लेकिन अब आप ये देखो कि जिस स्कूल के अंदर आप गए हो उस स्कूल की क्या रैंकिंग है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ स्कूल ऑफ एनर्जी एंड पावर इंजीनियरिंग, तो मेरा जो स्कूल है वो पूरे चाइना के अंदर नंबर 1 रैंक करता है। आप ये भी देखो, ठीक है। एंड उस स्कूल के अंदर जो प्रोग्राम है आप उसकी भी रैंकिंग देखो। फिर आप ये देखो कि आइदर आप जिस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी के अंदर वो इंग्लिश टॉट है या नहीं है। आपको 2 तरीके से पढ़ने का मौका मिलता है चाइना के अंदर, या तो आपकी डिग्री पूरी पूरी इंग्लिश टॉट होगी, या फिर वो चाइनीज टॉट होगी। तो चाइनीज के अंदर पढ़ोगे काफी मुश्किल पेश आती है, लेकिन इंग्लिश के अंदर आप ये देखो, कोशिश करो कि आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम पढ़ो। लोकेशन भी मैटर करती है, सिटी प्रेफरेंस, कि आपकी सिटी प्रेफरेंस कौन सी है। आप शंघाई के अंदर पढ़ना चाहते हो, आप बीजिंग के अंदर पढ़ना चाहते हो, आप चौंगचिंग के अंदर पढ़ना चाहते हो, आप दालियान के अंदर पढ़ना चाहते हो, आप शियान के अंदर पढ़ना चाहते हो, आप कौन से सिटी के अंदर पढ़ना चाहते हो। मेजोरिटी आपको जो टॉप यूनिवर्सिटी, आप वुहान के अंदर पढ़ना चाहते हो, आपको जो टॉप यूनिवर्सिटीज मिलेंगी वो शंघाई बीजिंग के अलावा बाकी सिटीज में मिल सकती है, बट यू हैव टू सर्च अपॉन इट। फिर आप ये देखो कि आइदर जिस सिटी के अंदर आप रह रहे हो उसकी लिविंग कॉस्ट क्या है। बीजिंग और शंघाई के अंदर आपकी लिविंग कॉस्ट थोड़ी सी बड़ी होगी, क्यों, क्योंकि वो प्रॉपर्ली मेट्रोपॉलिटन सिटीज है और एज कम्पेयर टू अदर सिटीज, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी बड़ी होती है। आप स्टूडेंट सपोर्ट भी देखो कि हाउ दोज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स गाइड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। फिर आप देखो इंडस्ट्री कनेक्शन, देखो कि उस यूनिवर्सिटी के इंडस्ट्री कनेक्शन किन किन इंडस्ट्रीज के साथ हैं। आप अपनी रिसर्च के अंदर, आप अपने उस प्रोग्राम के अंदर फैकल्टी का एक्सपीरियंस देखो कि उन्होंने पीएचडी कहाँ से की होती है। लाइक योर सुपरवाइजर, उनकी पोस्ट डॉक है तो पोस्ट डॉक कहाँ से है, पीएचडी है तो पीएचडी कहाँ से है। मैं अपनी एग्जांपल दूं तो माय सुपरवाइजर, ही हैड हिज मास्टर्स एंड बैचलर्स इन चाइना। उन्होंने अपनी पीएचडी की थी जर्मनी से, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट से। अगर आपको किसी को नहीं पता तो मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड इंस्टीट्यूट इन जर्मनी, और वो भी उसका जो नाम है वो पूरा का पूरा जाना जाता है पूरी दुनिया के अंदर। एंड उनकी जो पोस्ट डॉक थी उन्होंने यूएस से की थी, अटलांटा यूनिवर्सिटी से। तो आप ये देखो, और उसके बाद देखो कि उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन जॉब प्लेसमेंट क्या है उस यूनिवर्सिटी की। लाइक उस यूनिवर्सिटी के अंदर आप जा तो रहे हो, लेकिन आपको फिर उस ग्रेजुएशन का क्या फायदा मिलेगा वहां से। अपनी एग्जांपल दो तो आई एम नॉट दैट मच, मैं बताना नहीं चाह रहा, लेकिन एक तरीके से आपको समझाने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए कि व्हाई यू शुड अप्लाई फॉर चाइना, क्योंकि इट्स अ गुड ऑप्शन। तो शियान के अंदर जब आप ग्रेजुएट होते हो,
ये इस यूनिवर्सिटी का एक पर्क है कि आपको एक मौका मिल सकता है, आप अप्लाई कर सकते हो शियान के थ्रू 1 साल का शेंजन वीजा। अब शेंजन वीजा क्या है? शेंजन वीजा आपके पास एक ऐसा वीजा है जिसके थ्रू आप यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में जा सकते हो और वहां पे जॉब प्लेसमेंट देख सकते हो। आपको शियान की यूनिवर्सिटी से जब आप ग्रेजुएट होते हो तो आपको वो 1 साल का वीजा मिलता है, यूनिवर्सिटी के थ्रू ही वीजा मिलता है। एंड आप 1 साल के लिए जब जाते हो यूरोपियन यूनियन तो आप वहाँ पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं, उसे नाम देते हैं हम शेंजन जॉब सीकिंग वीजा शियान जोतोंग के ग्रेजुएट्स के लिए। फिर आप ये देखो कि एलीट यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है। एलीट यूनिवर्सिटीज आपके पास जो है वो है शिंगुआ यूनिवर्सिटी है, पीकिंग यूनिवर्सिटी है, फुडान यूनिवर्सिटी है, जेजियांग यूनिवर्सिटी है, यूएसटीसी है, शियान जोतोंग है। Tsinghua is number 1 in China. Peking is number 2 in China. Fudan is number 3 in China. Zhejiang is number 4 in China. और USTC is number 5 in China. ये आप मैं आपको टॉप 5 बता रहा हूँ। और ये सारी की सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं ये एक तरीके से माहिर हैं एआई के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, बिजनेस के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, आपका साइंस के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, फिजिक्स के अंदर, मैथ के अंदर और टेक इनोवेशन के अंदर। टीयर 1 यूनिवर्सिटीज क्यों आप चूज करते हो? टीयर 1 इसलिए आप चूज करते हो क्योंकि एक तो हायर स्कॉलरशिप रेट होता है, लाइक 80 to 90% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वो हायर स्कॉलरशिप मिलती है। वर्ल्ड क्लास रिसर्च फैसिलिटीज होती है उनकी, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा है। लाइक जब आप उनकी टाइम्स क्यूएस रैंकिंग देखोगे या एक तरीके से जब उनकी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग देखोगे तो उनकी बहुत अच्छी रैंकिंग होगी। शिंगुआ की जो रैंकिंग है वो क्यूएस रैंकिंग में 31st पे आती है वो शिंगुआ। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो जो आपकी दूसरी नंबर वाली यूनिवर्सिटी है जो कि मैंने आपको भी बताया था पीकिंग यूनिवर्सिटी, इट इज ऑन नंबर 48 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो देखो आप उनकी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग किस तरीके से अच्छी है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट आपकी बहुत अच्छी है कि यहाँ से जब आप ग्रेजुएट होते हो तो एम्प्लॉयज आपको, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो आपको जरूर हायर करते हैं आपकी फील्ड के अंदर। बट यू हैव टू लुक अपॉन योर सेल्फ एज वेल। आपको खुद भी देखना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। रिसर्च के एतबार से आपके पास नानजिंग यूनिवर्सिटी है अच्छी, आपके पास हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, आपके पास शंघाई जियाओतोंग यूनिवर्सिटी है। शंघाई जियाओतोंग इज वेरी वेरी गुड यूनिवर्सिटी जिसके अंदर आपकी प्लेसमेंट हो सकती है। आपके पास वुहान यूनिवर्सिटी भी है। और मेडिकल के लिहाज से क्योंकि आई वाज रीडिंग कि किसी हमारे पास फेलो ने कहा था कि शी इज डूइंग एंड शी इज इंटरेस्टेड टू हैव मेडिसिन। तो मेडिसिन के लिहाज से भी आपके पास एक यूनिवर्सिटी जिसे हम लोग नाम देते हैं हुआजोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि वुहान के अंदर है। तो इन यूनिवर्सिटीज के अंदर भी आप जब अप्लाई करते हैं तो आपकी एक तो इनकी ग्लोबल रैंकिंग अच्छी है, दूसरा प्लेसमेंट रैंकिंग भी इनकी अच्छी है जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो। अगर हम नेक्स्ट चीज पे चलें और इनकी जो रैंकिंग्स होती हैं आप देख सकते हो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग और टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग, दो रैंकिंग्स होती हैं जो कि वर्ल्ड वाइड चल रही हैं, क्यूएस रैंकिंग और टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग। उसके बाद अगर हम देखें मजीद बढ़े आगे तो फिर आप देखते हो कि आप कौन से सब्जेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा आपका दिल लग रहा है कि विच सब्जेक्ट डू यू लव द मोस्ट। इसके ऊपर यू कैन गेट मोटिवेटेड बाय सम पर्संस और इट इज टोटली अपॉन यू। फिर सबसे पहले बात है कि सब्जेक्ट जो है वो आपका पैशन होता है। एक रियलिटी चेक देता चलो, रॉन्ग चॉइस मत करना। अगर तो आपने गलत फैसला लिया तो आपको 2 से 3 साल की मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। अब मायूसी का सामना किस तरीके से करना पड़ सकता है? मायूसी का सामना इस तरीके से करना पड़ सकता है कि आप एक तरीके से मायूस हो सकते हो कि आपके ग्रेड सफर कर सकते हैं, आप अपना पैसा और वक्त दोनों तरीके से वेस्ट करोगे। आप जो आपकी घर वापस जब आप जाओगे तो आप एक तरीके से अनफुलफिल्ड होगा, आप प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड नहीं होगे और आपका जो करियर है उसके अंदर आप प्रॉपर्ली अपनी स्ट्रेंथ को नहीं बना पाओगे। सो मेकिंग द राइट चॉइस इज द बेस्ट थिंग। और आप एक तरीके से स्ट्रगल भी बहुत करोगे अपने कोर्स वर्क के अंदर जिससे आप एक तरीके से सख्त नापसंद करोगे। राइट चॉइस, व्हाई डू द राइट चॉइस मैटर्स? राइट चॉइस इसलिए मैटर करती है कि आप एक तरीके से जब आपका एक फेवरेट फील्ड होगा, फेवरेट सब्जेक्ट होगा तो उसके अंदर आपकी रिसर्च जो है वो इम्पैक्टफुल होगी, आप जेन्युइन एक्सपर्टीज बिल्ड करोगे, आप अपने करियर से सेटिस्फाई होगे, आपके पास अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, चाहे वो इंटर्नशिप के अंदर हो, चाहे वो जॉब के अंदर हो, चाहे वो मास्टर्स के अंदर हो, पीएचडी के अंदर हो या बेशक पोस्ट डॉक के अंदर ही क्यों ना हो। और आप नेचुरली एक्सेल करना चाहोगे उसके अंदर। आपका खुद ब खुद दिल कर लग रहा होगा, आप खुद ब खुद ये सोचोगे कि यार ये चीज अच्छी है, मुझे कर लेनी चाहिए, मैं ये स्किल डेवलप कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरी फील्ड का हिस्सा है। एक सवाल पूछूंगा आप लोगों से, तो उसके लिए ऑनेस्टली मुझे जवाब देना कि आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट क्या चीज करती है? इज इट कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स या इज इट कंडक्टिंग सॉल्विंग इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स?
हेल्थ केयर अच्छा लगता है, मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, कोडिंग अच्छा लगता है, बिजनेस स्ट्रेटेजी अच्छा लगता है, डाटा को एनालाइज करना अच्छा लगता है, एंटरप्रेन्योरशिप अच्छा लगता है, क्रिएटिविटी अच्छी लगती है, लैंग्वेज अच्छी लगती है, या एनवायरमेंटल इश्यूज अच्छे लगते हैं? दिस इज माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. डू think about it just for a minute ही बेशक क्यों ना. So this is my question. What genuinely interests you? Let me see. और ये वो नहीं है कि आप क्या कहते हैं, आपके सरों पे बंदूक है और आप वैसे एक तरीके से जो है मैं जबरदस्ती पूछ रहा हूँ. इट्स जस्ट अपॉन योर इंटरेस्ट. Healthcare and creativity, mathematics, entrepreneurship, surgery, creativity, research, experimentation. It's really good for all of you. और ये अच्छी भी लगेगी आप लोगों के लिए. लैंग्वेज, ओके, लैंग्वेज के लिए भी हमारे पास यूनिवर्सिटीज हैं बहुत सारी. हेल्थ केयर एंड रिसर्च, ओके 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 ओके. लॉ, लॉ, यस, आई हैव आल्सो सम पाकिस्तानी फ्रेंड्स जो कि यहाँ पे एलएलएम कर रहे हैं. मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, एक तरीके से वो जिन सुपरवाइजर के अंडर है, ही इज द डीन ऑफ लॉ डिपार्टमेंट, लॉ स्कूल. तो वो कहते हैं कि मैं अपने प्रोफेसर से सिर्फ 2 दफा मिला हूँ अभी तक, लेकिन माय प्रोफेसर इज चिल. वो कह रहे थे कि पहले पहले अपने कोर्स वर्क कंप्लीट कर लो. नाउ जब वो वापस आएंगे, अभी तो वो पाकिस्तान गए हैं, तो जैसे ही वो वापस आएंगे तो ही सेड लाइक नाउ माय रिसर्च विल स्टार्ट इन एलएलएम. Environmental issues, okay, Mr. Misha, thank you. Entrepreneurship, creativity, healthcare, surgery, robotics is a good thing. Entrepreneurship, creativity, yes, thank you so much guys. आप लोगों ने एक तरीके से अच्छा सब्जेक्ट्स बताए हैं जो आपकी चीज़ों को इंटरेस्ट करते हैं. फिर आप ये भी देखो कि मैं इस प्रॉब्लम को इस तरीके से देखता, तो इसका मैं ये हल निकालना चाहता हूँ, या मेरा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा मैं बेस्ट इस सब्जेक्ट में हूँ, तो मैं इस सब्जेक्ट में बेस्ट क्यों हूँ, या लोग ये कहते हैं कि मैं गुड हूँ इस सब्जेक्ट में, तो क्यों हूँ. ठीक है, आप ये भी देखो कि मैं अपने फ्री टाइम में किस चीज को ज्यादा देखता हूँ, या किस चीज को ज्यादा मैं ऑब्जर्व करता हूँ. क्रिटिकल थिंकिंग जिसे हम कहते हैं. या मैं अपने कॉलेज लाइफ के अंदर मुझे ये चीज सबसे ज्यादा एक्साइट करती थी, या एक तरीके से मुझे यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीज एक्साइट करती थी, तो मैं इस चीज को भी थोड़ा सा देख सकता हूँ. ठीक है, आप ये देखो, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर साइंस, एआई, डेटा साइंस, इट्स गुड. हाई सैलरी पोटेंशियल है, ग्लोबल डिमांड है, और स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है. एंड यस, वन गुड थिंग, रिमोट वर्क है. मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको आप रिकॉग्नाइज होते हैं ग्लोबली. पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन बूम बहुत ज्यादा है आपके पास, और मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, एंड इट इज अ स्टेबल करियर. बीबीए के हिसाब से देखें या बिजनेस के हिसाब से देखें, इट्स अ फ्लेक्सिबल डिग्री. आपके पास करियर स्विच अपॉर्चुनिटीज बहुत होती है, मैनेजमेंट पास बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और नेटवर्क बिल्डिंग होती है आपके पास. और रियलिटी चेक जो बिजनेस के अंदर होता है वो ये होता है कि आपके पास बहुत ज्यादा दरवाजे खुलते हैं, और गुड नेटवर्किंग होती है, और यू आर डूइंग अ गुड जॉब. हेल्थ केयर के अंदर भी यही होता है कि आपका पूरा का पूरा ध्यान रिसर्च ओरिएंटेड होता है. आप अपने आप को एक्सेल करवा रहे होते हो, एंड यू वांट टू डू समथिंग बेटर फॉर द सोसाइटी, एंड यस, इट पेज यू एज वेल. हेल्थ केयर के अंदर अगर हम फोकस करें, इन्वायरमेंट के अंदर, सो और अगर मैं वैसे बताऊं तो अपने मेरा जो इंटरेस्ट है वो यही है कि लाइक टू प्रॉपरली सॉल्व दीज थिंग्स एट द इंटरनेशनल फॉरम्स ऑन द बिगर स्केल. आई एम नॉट जस्ट थिंकिंग अबाउट जस्ट हैविंग अ गुड जॉब इन पाकिस्तान. सो मेरा जो वैसे एम है वो यही है कि लाइक आई हैव टू वर्क विद द यूनाइटेड नेशंस, यूएन. तो यू हैव, हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस होती है, सो आप वो देखो. अच्छा, अब अगर हम वैसे बात करें और अगर हम आगे बढ़े, तो हमारे पास एक और चीज आती है कि आप रिसर्च किस चीज के ऊपर करना चाहते हो, या आपको रिसर्च करनी तो कौन सी चीज के ऊपर करनी है. ठीक है, आप ये देखो, तो हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं या जिसको हम लोग एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो क्वेश्चंस ये होते हैं. फॉर एग्जांपल, कि कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा जेन्युइनली एक्साइट करता है, कि आपका कौन से कोर्स के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स थे, या आपने किस चीज को वॉलंटरीली पढ़ना चाहा था, या आप कौन सी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहते हो. रियलिस्टिक क्वालिफिकेशंस के अंदर आपकी बैचलर्स के अंदर जीपीए मार्क्स मैटर करते हैं, आपका आईएलटीएस एंड टॉफल का स्कोर मैटर करता है, आपका वर्क एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपका रिसर्च एक्सपीरियंस, पब्लिकेशंस मैटर करती हैं. And publications is not just about research papers, review papers, या research articles. It could be about a blog. It could be about a news article, जो हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं, op-ed. It could be about anything जो कि आपने अपने तरीके से अपनी तरफ से पब्लिश की होती है. ठीक है, उसके अंदर पर आपका व्यू पॉइंट झलकना चाहिए. उसके बाद आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन होती है वो भी मैटर करती है कि क्या आपकी फैमिली पूरी तरीके से आपको सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं, या आपको 100% स्कॉलरशिप चाहिए,
कि या फिर आपको पार्ट टाइम काम करना भी है या नहीं, या फिर आपका रियलिस्टिक बजट कितना है। ठीक है, फिर आप एक और चीज देखते हो कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के गोल्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल, आप पाकिस्तान में काम करना चाहते हो या अब्रॉड में काम करना चाहते हो, आप इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर काम करना चाहते हो या एकेडेमिया के साथ काम करना चाहते हो, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर आप किसी स्पेसिफिक सिटी में जाकर जॉब करना चाहते हो। ठीक है, आप फिर ये भी देखो कि कौन कौन सी कंपनी के लिए आप काम करना चाहते हो। अगर हम यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखें तो हर जो यूनिवर्सिटी है उसकी एक तरीके से आप देखना चाहते हो कि उसका ऑफिशियल प्रोग्राम ब्रोशर है वो कौन, हर यूनिवर्सिटी का हर साल के लिए, या फॉर एग्जांपल 2026 के लिए, 2027 के लिए, 2028 के लिए एक स्पेसिफिक ब्रोशर वो लॉन्च होता है, जिसके अंदर वो ये बताते हैं कि इस साल वो ये प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे होते हैं। आप उसको भी देखो। फिर आप ये देखो कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है। फिर आप एप्लीकेशन डेडलाइन देखो। फिर आप ये वेरीफाई करो कि उस प्रोग्राम की ड्यूरेशन कितनी है। चाइना के अंदर आपके जो मास्टर्स हैं वो 2 साल का भी हो सकता है, वो 3 साल का भी होता है। पाकिस्तान में तो हमें पता है कि मास्टर्स एम फिल जो है वो 2 साल का होता है अमूमन, लेकिन चाइना के अंदर इट डिपेंड्स अपॉन योर डिग्री, अपॉन योर प्रोग्राम, कि आपका जो मास्टर्स है वो 2 साल के या 3 साल के। बेशक वो इंग्लिश टॉट ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल फॉर मी माई मास्टर्स इज ऑफ 2 years, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं केमिस्ट्री के अंदर, उनका जो मास्टर्स है बेशक वो इंग्लिश टॉट है लेकिन वो 3 साल की डिग्री है। फिर आप ये देखो कि आपके पास जो सुपरवाइजर्स हैं आपकी फील्ड के अंदर या प्रोफेसर हैं वो कौन कौन से अच्छे हैं एंड उनका काम किसके ऊपर है। ठीक है, फिर आप ये देखो कि आइदर आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन सी स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, हो रही है। हम उनको स्कॉलरशिप भी थोड़ा सा भी आगे देखेंगे। फिर आप ये भी देखो कि रैंकिंग कितनी है यूनिवर्सिटी की, और फैकल्टी की प्रोफाइल्स देखो। फिर ये भी देखो कि उस प्रोग्राम के अंदर या उस स्कूल के अंदर या उस यूनिवर्सिटी के अंदर कितने ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। एंड यस, डज दैट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड इंटर्नशिप प्लेसमेंट या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, यस और नो। ओके, अगर हम ये जॉब मार्केट के हिसाब से देखें तो फिर ये भी देखते हैं हम लोग कि आइदर उस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने के बाद जो हमने सब्जेक्ट चूज किया हुआ है या हमने जो रिसर्च चूज की हुई है उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जॉब्स एग्जिस्ट करती है नहीं करती, चाइना के अंदर जॉब्स एग्जिस्ट करती है नहीं करती, बाहर सैलरी जो है वो अब्रॉड कितनी है उसकी, यूके के अंदर, यूएसए के अंदर, कनाडा के अंदर, यूएई के अंदर। 5 साल बाद हमारे पास जो हम लोग जहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, जहाँ हमारी जब जहाँ पे जॉब होगी है तो उसका आउटलुक हमें क्या मिलेगा, आउटकम क्या मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर एवरेज सैलरी कितनी चल रही है हमारे पेशे की नज़र या हमारे पेशे के अंदर अंदर, और कौन कौन सी कंपनीज हायर कर रही हैं। ठीक है, और स्किल बिल्डिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। थ्योरेटिकल पढ़ना, थ्योरीज पढ़ना, इंटर्नशिप करना, इट्स गुड थिंग, बट स्किल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। स्किल बिल्डिंग करोगे तो सब चीजें मिल जाती हैं। फिर आप ये भी देखो कि आपके पास लिंक्डइन, व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर कौन कौन से पाकिस्तानी ग्रेजुएट हैं जो कि उस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर चुके हैं। एंड राइट नाउ आइदर आर दे इन चाइना और आर दे इन अनदर कंट्री, या फिर वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। एंड ये मत हिचकिचाओ कि मैं उनको मैसेज करूं या ना करूं, या मैं उनसे पूछूं या ना पूछूं, और अगर मैंने उनको मैसेज कर लिया तो अब मुझे रिप्लाई आएगा या नहीं आएगा। मेजोरिटी जो पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स होते हैं जो कि वहां से ग्रेजुएट हो चुके हैं तो वो आपको लाजमी रिप्लाई करते हैं, वो आपको प्रॉपर्ली गाइड करते हैं। ये जो डर होता है ना हिचकिचाने वाला कि मैं पूछूंगा एक बेसिक क्वेश्चन तो वो बुरा तो नहीं मानेंगे या वो क्या सोचेंगे, तो उस चीज से ना बरी जमा हो जाओ। ये आपकी फ्यूचर का सवाल है, आपने ही चीज कि ये काम करना है। एंड माई मदर ऑलवेज यूज टू से, शी से लाइक, दानियल प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। सो हमारे केसेस के अंदर हम लोग प्यासे हैं, एंड हमारे लिए हमारे जो बड़े हैं जो कि उस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर चुके हैं, नाउ दे आर वर्किंग इन अ गुड कंपनी, वो कुएं हैं। सो वी हैव टू गो टुवर्ड्स देम, नॉट दे हैव टू कम टुवर्ड्स देम, टुवर्ड्स अस। ये चीज का डिफरेंस देखना। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें, हमारे पास एक और चीज है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, तो यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग्स हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं कि सबसे पहले तो आपके पास एक तरीके से आपको रैंकिंग बताती है कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च आउटपुट कितनी है, कितने ज्यादा वो रिसर्च आर्टिकल्स को पब्लिश करती है, वो रिसर्च के अंदर कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, इंटरनेशनली उसकी क्या रेपुटेशन है, उसकी जो फैकल्टी है वो फैकल्टी कितनी ज्यादा अच्छी है, और
कौन से वो टीयर में फॉलो अप होती है कंपेटिटिवनेस के। फॉर एग्जांपल, जो आपके पास C9 लीग की यूनिवर्सिटीज हैं, तो उनके पास एक टफ कंपटीशन है आपस में एक दूसरे के खिलाफ। C9 के अलावा हमारे पास चाइना के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट K295 है हमारे पास एक, जिसके अंदर 500 यूनिवर्सिटीज आती हैं। एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमारे पास 50 यूनिवर्सिटीज आती हैं। एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमारे पास 100 यूनिवर्सिटीज आती हैं। तो आपको ये भी चीज देखनी पड़ेगी कि आपकी यूनिवर्सिटी की जो कॉम्पिटिटिवनेस है बाकी यूनिवर्सिटीज के साथ वो कैसी अच्छी है। ठीक है। उसके अलावा फिर जो आप रैंकिंग देख सकते हो, आप रैंकिंग देख सकते हो QS वर्ल्ड रैंकिंग के ऊपर, आप टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग के ऊपर देख सकते हो। एक जो चाइना के अंदर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होती है ना, वो दो तरीके से होती है। एक होती है ये जो C9 लीग वाली है। C9 लीग के अलावा जो मेजोरिटी जहाँ पे चलती है ना यूनिवर्सिटीज के अंदर रैंकिंग, जो चाइना के अंदर होती है, वो चलती है शंघाई रैंकिंग्स। शंघाई रैंकिंग्स के अंदर शियान चाओतोंग इज ऑन नंबर 10 एंड वुहान यूनिवर्सिटी शियान चाओतोंग से ऊपर है। ठीक है, ये आप लाजमी देखना शंघाई रैंकिंग्स। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक रैंकिंग भी आप देख सकते हो, वो नैरो डाउन कर देती है आपके आपके लिए तमाम चीजों को। उसके बाद रैंकिंग मैट्रिक करती है। अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी की ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड रैंकिंग में है, तो हायरिंग मैनेजर्स प्रॉपर्ली पहचान जाएंगे आपकी यूनिवर्सिटी को। और अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी टॉप 100 से 200 के अंदर है, आप प्रॉपर्ली एक अच्छी जॉब प्लेसमेंट आपको मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी टॉप 300 से 500 के अंदर है, इट्स गुड, आपका अभी भी प्लेसमेंट हो सकती है। ओके। मिडल ईस्ट के अंदर आपके पास एक अच्छा एडवांटेज होता है जब आप चाइना से प्रॉपर्ली ग्रेजुएट होके जाते हो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से। ये आपके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवांटेज होता है एंड दे प्रेफर इंटरनेशनली। आपके पास नई से नई डोर्स ओपन होते हैं रिसर्च ओरिएंटेड, और आपके पास वर्क अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। आपके पास डिफरेंट जगह पे आगे पढ़ने के लिए पोस्ट डॉक PhD करने के लिए स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं अपार्ट फ्रॉम चाइना। और चाइना के अंदर फिर आप जब देखते हो तो आपके पास एक तरीके से दो टीयर की यूनिवर्सिटीज आती हैं। एक आती है Tier 1 यूनिवर्सिटीज जो कि ग्लोबली कंपेटिटिव होती हैं, और एक आती है Tier 2 यूनिवर्सिटीज जो कि अच्छी रैंक होती हैं। ठीक है। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक रैंकिंग में भी मैटर करती है कि आप एक आपके पास इंस्टीट्यूट है हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इट्स इन C9 लीग यूनिवर्सिटी। ओवरऑल उसकी जो रैंकिंग है वो 111 है, या कभी कभार एक तरीके से ओवरऑल उसकी जो रैंकिंग हो सकती है इट कुड बी 124। लेकिन इंजीनियरिंग के अंदर उसकी जो रैंकिंग है इट्स इन टॉप 50। सब्जेक्ट स्पेसिफिक रैंकिंग भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। कि ये मैटर इसलिए करती है कि एम्प्लॉयर्स जो है उस जो फील्ड के होते हैं वो टॉप प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं। फिर आपके सब्जेक्ट की रैंकिंग जो है वो मच मोर इम्पोर्टेंट होती है कुछ जगहों पे एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी रैंकिंग। और एक स्पेशलिस्ट जो होता है वो ज्यादा अच्छे तरीके से एंड ज्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू अ जनरलिस्ट। यू आर अ स्पेशलिस्ट एंड another person जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी रैंकिंग दिखा रहे हैं, he can be a generalist. Okay, so you have to focus on both things. उसके बाद अगर हम मजीद आगे बढ़ें तो आपके पास एक और चीज आती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्कॉलरशिप टाइप्स। स्कॉलरशिप टाइप्स आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो नाउ अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो सबसे पहले आपके पास आती है CSC, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल जो आती है CSC। पाकिस्तान के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेजोरिटी जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आते हैं वो CSC के ऊपर आते हैं। इसके अंदर आपके पास 3 टाइप्स होती हैं, टाइप A, टाइप B, टाइप C। टाइप A के लिए आप अप्लाई करते हो वाया HEC, जिसके अंदर आपको HEC के थ्रू टेस्ट देना पड़ता है एंड HEC वो लिस्ट बनाती है एंड HEC प्लेसमेंट करती है आपकी। आप जब अप्लाई कर रहे होते तो फिर HEC के थ्रू आपका एडमिशन जाता है। और टाइप B के अंदर आप खुद ब खुद अप्लाई कर सकते हो, आपको HEC का कोई आपको HEC का कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता एंड आपकी अच्छे तरीके से जब रिजल्ट लॉन्च होते हैं तो आपको वो पता चल जाता है कि आइदर यू हैव बीन एक्सेप्टेड इन टाइप B स्कॉलरशिप या नहीं। अगर हम टाइप A की स्कॉलरशिप के बारे में बात करें तो टाइप A के अंदर आपको जो मिलता है मास्टर्स के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 3500 मिलता है, 3500 RMB। और PhD के लिए इट्स अराउंड 4000 RMB, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टाइप A के अंदर 4000 या 4500 RMB, आई एम नॉट श्योर, मुझे टाइप B का पता है। टाइप B के अंदर आपको जो मिलता है, जिसके अंदर मेजोरिटी पाकिस्तानी लोग आते हैं विदाउट हैविंग एनी HEC टेस्ट, एंड वो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो टाइप B के अंदर। प्लीज लिखते जाओ गाइस, ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो CSC के थ्रू तो ये चीज आप लिख लो। टाइप B के अंदर आप अप्लाई करते हो। मास्टर्स के अंदर आपको जो स्टाइपेंड मिलता है वो मिलता है 3000 RMB पर मंथ।
और पीएचडी के लिए जो मिलता है वो मिलता है 3500 RMB पर मंथ, एंड 1 RMB इज इक्वल टू 43 रुपीज, राइट नाउ इट्स अराउंड 2.76। तो ये चीज है। और जब आप सीएससी के थ्रू अप्लाई कर रहे होते हो तो अगर तो आप यूनिवर्सिटी की डॉर्मेट्री या यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के बाहर रह रहे हो, लाइक किसी अपार्टमेंट में रह रहे हो, तो सीएससी का फायदा ये होता है कि मास्टर्स के अंदर वो आपको 700 RMB एक्स्ट्रा देते हैं बाहर रहने का, और पीएचडी के अंदर आपको 1000 युआन एक्स्ट्रा मिलता है। RMB इज बीइंग सेड एज युआन, तो 1000 युआन आपको एक्स्ट्रा मिलता है। सो इट्स लाइक 3700 आपको मास्टर्स में मिलता है सीएससी के अंदर टाइप बी, और 4500 आपको पीएचडी में मिलता है टाइप बी सीएससी के अंदर। और इसका क्या एप्लीकेशन प्रोसेस होता है? इसका एप्लीकेशन जो होता है वो ये होता है कि आप अक्टूबर से दिसंबर तक, या मोस्ट प्रोबेबली हार्डली अगर आप लेट भी अप्लाई करते हो तो फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो सीएससी के पोर्टल के ऊपर। सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी चूज करते हो, आप प्रोग्राम चूज करते हो। उसके बाद जो स्टेप है वो ये है कि आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर उस प्रोग्राम के अंदर जाके सुपरवाइजर्स देखो। ये देखो कि एक सुपरवाइजर का किसके ऊपर काम है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी फील्ड के बारे में बता सकता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि जो सुपरवाइजर है आइदर उनका काम एयर के ऊपर है, आइदर उनका काम वेस्ट वाटर के ऊपर है, आइदर उनका काम सॉइल के ऊपर है। देन मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि मैं अब उनको ईमेल करूंगा। ईमेल का भी एक फॉर्मेट है। मैंने तो एक तरीके से जब उनको टू द पॉइंट ईमेल करोगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके ईमेल करोगे, तो वो ईमेल पढ़ लेंगे एंड आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभार वो ईमेल का रिप्लाई नहीं करते तो डिसहार्ट नहीं होते, आप जो है किसी और प्रोफेसर को कांटेक्ट करो। आपके पास मैक्सिमम अगर एक सुपरवाइजर का जो है वो ईमेल नहीं आता विद इन 5 to 6 days, आप उनको कोल्ड ईमेल करो। अब कोल्ड ईमेल क्या होता है? कोल्ड ईमेल ये होता है कि आप उनको ये कहो कि प्रोफेसर आई होप यू आर डूइंग रियली वेल, आई जस्ट वांटेड टू चेक is the seat available, and if you are looking for any master or PhD student under in your lab for this kind of research or for this research interest, जो कि प्रोफेसर का ही फेवरेट होगा जिसके अंदर वो काम कर रहा होगा, ये कोल्ड ईमेल होता है। सीएससी के अंदर ये नहीं होता कि एक ईमेल कर लिया सुपरवाइजर को किसी यूनिवर्सिटी के तो काफी है। आप बेशक हजारों ईमेल भेजो, हजारों डिफरेंट सुपरवाइजर्स को भेजो, बस मकसद ये होता है कि आप ईमेल भेजते चले जाओ। आपको लेट सपोज 50% आपको ईमेल्स आते हैं एंड 50% आपको ईमेल्स नहीं आते। उन 50% में से भी जो ईमेल्स आएंगे उनमें से 30% जो होंगे वो कहेंगे कि सो सॉरी वी कैन नॉट हैव यू एज, हमारे पास सीट्स नहीं है। बाकी जो बचे 20% होंगे वो 20% में से 13% ये कहेंगे कि सो सॉरी हम आपको इस साल नहीं दे सकते, या हमारे पास आपका और मेरा रिसर्च अलाइन नहीं कर रहा इंटरेस्ट, तो हम नेक्स्ट ईयर आप अप्लाई कीजिएगा। और जो 7% बाकी बचे हुए प्रोफेसर की ईमेल्स होंगे उसके अंदर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। लेकिन एक सवाल मैटर होता है कि जब आप फर्स्ट ईमेल भेजते हो उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं। जो डॉक्यूमेंट भेज सकते हो आप, इट कुड बी, जो मैंने वैसे भेजे थे, मैंने दो बेसिक डॉक्यूमेंट भेजे थे। एक भेजा था मैंने अपनी सीवी, और दूसरी भेजी थी मैंने अपना मोटिवेशन लेटर। सीवी यूरोपास के ऊपर बनाओ। यूरोपास इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपनी सीवी बनाते हो एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्जेस नहीं है। सीवी डिटेल होनी चाहिए। हमारे पास पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि हम लोग सीवी 2 पेजेस की बना देते हैं, या मैक्सिमम 1.5 पेज की बना देते हैं, या मैक्सिमम हार्डली 3 पेजेस की बना देते हैं। जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते हो, पढ़ने के लिए, पढ़ने की घर से मैं कह रहा हूँ, तो आपकी सीवी जितनी ज्यादा डिटेल होगी उतना ज्यादा प्रोफेसर को पता चलता चला जाएगा कि आइदर इस स्टूडेंट ने किया क्या क्या है। तो सीवी इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप डिटेल होनी चाहिए, डिटेल्ड होनी चाहिए। मेरी जो सीवी है अगर मैं वैसे आपको दिखाऊं तो इट इज लाइक 4 पेजेस पे सीवी। ये भी मैंने सिर्फ स्कॉलरशिप के घर से बनाया था। तो यूरोप पास की सीवी के फॉर्मेट के ऊपर आप सीवी बनाओ उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर, और आप मोटिवेशन लेटर बनाते हो। मोटिवेशन लेटर के अंदर ये होता है कि आप अपना तारीफ करवाते हो, आप अपने ये बताते हो कि मैंने बैचलर्स के अंदर अपनी ये रिसर्च की हुई थी, एंड मैं अब मैं चाइना को इसलिए सिलेक्ट करता हूँ, इस वजह से सिलेक्ट करता हूँ, एंड मैं इस यूनिवर्सिटी को इस वजह से सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपकी यूनिवर्सिटी को, और मैं आपकी लैब को इस वजह से सिलेक्ट कर रहा हूँ। बेसिकली यू हैव टू प्रॉपर्ली टेल योर मोटिवेशन कि व्हाई आर यू प्रॉपर्ली ईगर टू कम अंडर हिज सुपरविजन फॉर मास्टर्स या फॉर पीएचडी। पीएचडी के जो लोग, लाइक जो जो मास्टर्स के ग्रेजुएट हो चुके होते हैं एंड वो पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कहा जाता है कि वो अपनी मोटिवेशन लेटर के साथ, अपनी सीवी के साथ लाजम मलजूम एक रिसर्च प्रपोजल को भेजें। रिसर्च प्रपोजल के अंदर क्या होता है? रिसर्च प्रपोजल के अंदर ये होता है कि
वो ये भेजते हैं कि वो किसके ऊपर काम करना चाहते हैं आगे, कौन कौन सी टेक्निक्स पे अप्लाई करना चाहते हैं, क्या अचीव्ड आउटकम्स हो सकते हैं उस रिसर्च के। उसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो फर्स्ट इंटरव्यू लेते हैं ना सुपरवाइजर आपका होता, वो इनफॉर्मल होता है, ठीक है। उस इनफॉर्मल, कभी कभार फॉर्मल होता है, तो थोड़ा सा तैयार होकर बंदा बैठा रहे, रेडी रहे उनके सवालात के लिए। तो उसके अंदर प्रोफेसर इज ईगर टू नो अबाउट यू, तो आपकी प्रेजेंटेशन किस तरीके से होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर होना चाहिए हु यू आर, व्हाट डिड यू डू इन द लास्ट 4 years, लाइक बैचलर्स के अंदर आपने क्या किया, अभी क्या कर रहे हो, आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस कौन सा है, आपने अपनी बैचलर्स के अंदर अगर रिसर्च की थी तो कौन सी रिसर्च की थी, चाइना को के अंदर क्यों आना चाहते हो, प्रोफेसर की लैब के अंदर इस चीज को क्यों रिसर्च करना चाहते हो, क्या आपके पास एक पोटेंशियल कोई गैप है या नहीं है, नहीं है तो लाइक इट्स नॉट अ बिग डील, बट ही जस्ट वांट टू नो अबाउट यू। और आगे, लाइक लेट्स सपोज इफ यू हैव बीन ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, तो आपके पास आगे आप 5 साल के अंदर क्या करना चाहते हो, या 5 साल के बाद क्या चीज देखते हो, ये चीज इंक्लूड होनी चाहिए आपकी पीपीटी के अंदर। बेसिकली लाइक हु एम आई, this is the question's answer that I want to provide to that professor. He is eager to know about you. ये होती है आपकी फर्स्ट मीटिंग। कभी कभार ये होती है कि आपके पास एक और ईमेल आती है जिसके अंदर वो यूनिवर्सिटी की तरफ से आते हैं कि हमें आपके रिसर्च प्रपोजल के ऊपर ईमेल चाहिए, और के ऊपर आपका इंटरव्यू हम लोग लेंगे। तो आपको फिर अपनी प्रॉपरली इंटरव्यू रिसर्च ओरिएंटेड ईमेल बनानी होती है, जिसके अंदर आप प्रेजेंटेशन बनानी होती है, जिसके अंदर आप प्रॉपरली अपनी रिसर्च ओरिएंटेड प्रेजेंटेशन बनाओगे। फॉर एग्जांपल आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, आप पोटेंशियल मेथोडोलॉजी बताओगे, आप लिटरेचर रिव्यू दोगे, आप गैप्स के बारे में बताओगे, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताओगे, एंड आप अपने फिर पोटेंशियल रिजल्ट्स के बारे में बताओगे कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ। ये भी होता है। उसके बाद एक और चीज अगर मैं आपको बताऊं, तो फिर आपके पास सीएससी स्कॉलरशिप के अलावा कौन सी स्कॉलरशिप आती है, सीएससी स्कॉलरशिप के अलावा आपके पास आती है बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप। अगर तो आपका सीएससी के अंदर नहीं लगता नाम, तो डोंट बी डिसहार्ड, आप बेल्ट एंड रोड में अप्लाई कर सकते हो। स्कॉलरशिप अच्छी है, स्टाइपेंड भी अच्छा है, एंड मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज के अंदर, लाइक लेट्स सपोज अगर स्टूडेंट का नहीं लगता सीएससी के अंदर, तो दे यूजुअली गिव योर नेम टुवर्ड्स बेल्ट एंड रोड, एंड आपका फिर बेल्ट एंड रोड के अंदर हो जाता है। इसका भी स्टाइपेंड अच्छा है, लाइक इट्स अराउंड 2500 RMB फॉर मास्टर्स राइट नाउ, टिल नाउ, and for PhD graduates it's around 3000 RMB. Or answer scholarship is the most prestigious scholarship in the whole China. दो इंस्टीट्यूट्स पूरे के पूरे चाइना के अंदर आपको आंसर स्कॉलरशिप दे रहे होते हैं। अगर मैं वैसे बताऊं तो वन ऑफ द इंस्टीट्यूट इज यूएसटीसी, जो कि टॉप 5 यूनिवर्सिटी रैंकिंग है चाइना के अंदर, एंड द अदर इज यूकास, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस, चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेस। ये दो आपको प्रॉपरली आंसर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। स्टाइपेंड बहुत अच्छा है, वर्ल्ड क्लास रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं इन दोनों यूनिवर्सिटीज के अंदर, फैकल्टी बहुत अच्छी होती है, एंड मास्टर्स के अंदर आपका स्टाइपेंड 3000 ही होता है, लेकिन पीएचडी के लिए आपका आंसर स्कॉलरशिप के अंदर जो स्टाइपेंड होता है इट्स 7000 RMB पर मंथ, और 7500 RMB पर मंथ, आई एम नॉट श्योर। और ये स्कॉलरशिप मैटर इसलिए करती है कि ये आपकी नीड को पूरा कर रही होती है और आपको मोटिवेट कर रही होती है आगे पढ़ने के लिए, रिसर्च पब्लिकेशन करने के लिए। एंड yes, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइक एक तरीके से आपकी ग्रेजुएशन के लिए भी इंपॉर्टेंट करती है, मैटर करती है। तो एक्सेप्टेंस ले लिया आपने, तो फिर आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करते हो, आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी अप्लाई करोगे और आप सीएससी के भी पोर्टल पे अप्लाई करोगे। आपके पास दो पोर्टल्स होते हैं। फिर सीएससी के जो रिजल्ट की जो इवेल्युएशन हो रही होती है आपके एप्लीकेशन की, वो इवेल्युएशन हो रही होती है फ्रॉम जनवरी टिल अप्रैल। आपके जो रिजल्ट अनाउंस होते हैं सीएससी के, वो होते हैं फ्रॉम अप्रैल मिड से लेकर जून की मिड तक। फिर जिसके अंदर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से प्री एडमिशन लेटर आ जाता है कि आपका सीएससी के थ्रू हो जाता है, आपका बेल्ट एंड रोड के थ्रू हो जाता है, आपका आंसू के थ्रू हो जाता है, और फिर आप वीजा इशू करवाते हो। लाइक एक तरीके से इस्लामाबाद के अंदर जेरी ऑफिस से आप जाते हो, जेरी ऑफिस आपको वो देखता है, एंड फिर वो चाइनीज एम्बेसी को भेजता है, एंड 2 हफ्तों के अंदर आपका विद इन 14 वर्किंग डेज आपका वीजा आ जाता है आपके पास। और फिर आप डिपार्चर जो होता है वो आपका अगस्त या सितंबर के अंदर होता है, लाइक अगस्त के एंड से लेके आपका सितंबर के स्टार्ट के अंदर आप इधर आ जाते हो चाइना के अंदर। व्हाट मैटर्स, आपका अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड, CGPA 3 से ऊपर हो, अच्छा है, वेल एंड गुड है। टिपिकली आपकी जो एज है वो 40 से कम हो, और ये प्रोग्राम
इलेक्टिव प्रोग्राम वेरी की जाती है। मेजॉरिटी 95% यूनिवर्सिटीज के अंदर आपके पास आइल्स या टॉफल रिक्वायर नहीं होता। आप एक तरीके से अपने यूनिवर्सिटी का जो आपके पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होता है, आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन टॉप 6 से 7 जो आपके पास यूनिवर्सिटीज हैं, फुडान, शिंगुआ, पीकिंग, शांघाई जियाओटोंग, यूएसटीसी, आइल्स रिक्वायर है इनके लिए आपके पास, टॉफल रिक्वायर है, या फिर आप डोलिंगो का इंग्लिश टेस्ट दे सकते हो। सो दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। लेकिन जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, अपार्ट फ्रॉम टॉप की यूनिवर्सिटीज, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, अप्लाई जरूर करो। वहां पर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर आप आ सकते हो। और पीएचडी के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। जो आपके पास एज लिमिट आती है वो मास्टर्स के लिए अमूमन आती है। टॉप जो 1 टियर यूनिवर्सिटीज होती है उसके अंदर आपके पास जो एक्सेप्टेंस रेट है वो 50 to 80% है कि वो प्रॉपरली सीएससी स्कॉलरशिप ले लेते हैं। टॉप 2 टियर यूनिवर्सिटीज के अंदर आपके पास जो सीएससी का एक्सेप्टेंस रेट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फुल सीएससी का, वो 50 to 70% है। और टॉप 3 यूनिवर्सिटीज के अंदर, टियर 3 यूनिवर्सिटी के अंदर वो आते हैं 30 to 50%। ठीक है, ये मैटर इसलिए कर रहा होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज आपके लिए। इट मेक्स योर लाइफ वेरी मच इजी। आप सेविंग कर सकते हो। और फॉर अ स्टूडेंट टू लिव हियर इन चाइना, यू कैन जस्ट लिव अ वेरी गुड लाइफ विद इन मैक्सिमम 1500 RMB। लेकिन अगर आप नॉर्मली एक तरीके से अच्छी तरीके से आप अप्लाई करना रहना चाहते हो चाइना के अंदर, तो 1000 RMB के अंदर आपका अच्छा गुजारा हो जाता है। एंड जो आपका 2000 RMB होते हैं या 1500 RMB आपका बचता है, इट गोज टू योर सेविंग। 500 RMB is equivalent to 20,000 RMB, 20,000 PKR. So it's like 80,000 to 60,000 PKR you can save। ठीक है, चाहे वो सीएससी हो या चाहे वो आपका ये बेल्ट एंड रोड हो। और आंसर के अंदर तो फिर आप बहुत अच्छे तरीके से सेव कर लेते हो पीएचडी अगर आप कर रहे होते हो, क्योंकि आंसर के अंदर फॉर पीएचडी इट्स लाइक यू आर गेटिंग पेड अराउंड, इफ नॉट 2,60,000 और 2,80,000, ये आंसर के अंदर आप बड़ी पे हो रहे होते हो। एंड इन तीनों यूनिवर्सिटीज के ये जो तीनों आपके पास स्कॉलरशिप कैटेगरीज है ना, चाइनीज, सीएससी, बेल्ट एंड रोड और आंसर स्कॉलरशिप, इसके अलावा भी यूनिवर्सिटीज आपको, यूनिवर्सिटीज की अपनी स्कॉलरशिप भी होती है, उसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो। लाइक अगर आपका तीनों में नाम नहीं आ रहा होता तो यूनिवर्सिटी आपको उन अपनी स्कॉलरशिप में रिकमेंड कर देती है। ओवरऑल बेशक उनका स्टाइपेंड कम होता है, लेकिन अगर तो वो आपकी डिग्री 2 साल की है या 3 साल की है, जरूर आओ, चाइना से ग्रेजुएट हो और अच्छी कंपनी में अप्लाई करो। पाकिस्तान की निस्बत यहाँ से जब ग्रेजुएट हो जाओगे तो आपको ज्यादा अच्छी जगह पे जॉब मिल सकती है। हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर जॉब मार्केट अभी कम है, पाकिस्तान से बाहर की तरफ लोग जा रहे हैं। चाइना के अंदर मास्टर्स कर लोगे, पीएचडी कर लोगे और फिर बाहर जाओगे, बेशक आपका स्कॉलरशिप कम है, स्टाइपेंड कम है, उसके अंदर मैनेज कर रहे हो तो डोंट वरी गाइस, मैनेज हो सकता है। 2 से 3 साल का ये मुश्किल से मुश्किल अरसा होता है, और उसके बाद आप बाहर जाते हो और अच्छी जॉब प्लेसमेंट होती है, अच्छी सैलरी मिलती है एज कम्पेयर टू अगर आप पाकिस्तान में मास्टर्स कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो। तो ये चीज है, मैं इसलिए आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। तो आगे अगर हम बढ़े तो आई एम जस्ट सेइंग कि इंस्पायर आपको बाकी लोग भी कर सकते हैं, लेकिन जरूर याद रखो कि आप डिफरेंट हो, अपने लिए एक राइट पाथ चूज करो। ये मेरा एक चीज है कि बी काइंड टू योर माइंड, अपने माइंड पे ज्यादा जोर ना दो कि मैं क्या करूं, लोग ये कर रहे हैं, मैं ये करना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं अपने बाबा की सुन लेता हूँ, मैं अपनी मामा की सुन लेता हूँ, या मैं अपने भाई की या बहन की सुन लेता हूँ कि वो ये कर रहे हैं, मैं ये कर रहा हूँ। जरूर सुनो, लेकिन कहो अपने मन की, चुनो अपने मन की। आई वॉज, मैं आपको अपनी किस्सा सुना दूं तो ओवरऑल इट इज नॉट अ गुड थिंग, मैं इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करता। When I applied in Quaid-e-Azam and Punjab University, I was also preparing for MD-CAT, but my name came in Quaid-e-Azam University's merit list. It was on proper merit. So my father asked me, he said, like, Daniel, do you want to apply in Quaid-e-Azam or you want to pursue MD-CAT की तैयारी? And I said, like, बाबा, इट्स बेटर कि मैं Quaid-e-Azam में अप्लाई कर लूँ, आप Quaid-e-Azam को लेके चलें। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि MD-CAT की क्या होगा, आप करोगे तैयारी? आई सेड नहीं, मैं फिर अपनी कायद-ए-आज़म को फॉलो करूंगा, मैं स्टडीज को, मैं प्रॉपर्ली अपने बीएस को फॉलो करूंगा। एंड अगर मैं अब देखूं, सो फार दिस वाज द बेस्ट डिसीजन फॉर मी। आप लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है, सो फॉर योर माइंड जस्ट बी काइंड। अगर मैं एमडी कर ले रहा होता उस वक्त, और उस वक्त भी था लाइक कोविड का फौरन बाद वाला दौर था, तो
इट वाज रियली प्रेशर। तो उस हिसाब से मैं कह रहा था कि आई वाज वेरी काइंड टू माय माइंड एंड राइट आई एम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आई एम ऑन द राइट ट्रैक फॉर माई सेल्फ। तो ये जो चीज़ है ना, बी काइंड टू योर माइंड, अपने लिए अच्छे से अच्छे हो जाओ। एंड दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। यू कैन गेट कनेक्टेड विद मी ऑन लिंक्डइन। अगर कोई प्रॉपर क्वेरी है रिगार्डिंग स्कॉलरशिप या रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन, तो यू कैन गेट कनेक्टेड विद मी ऑन माय जीमेल एज वेल। आप मुझे ईमेल कर लो, आप मेरे से डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो, सीवी मेरे से ले सकते हो मेरी सैंपल के तौर पे, उसको फिर अपने आप अकॉर्डिंगली बना लो। मेरे से मोटिवेशन लेटर ले लो मेरे से। मोटिवेशन लेटर सीवी के अलावा मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। मैं साइफान को भेज दूंगा ईमेल बॉडी जो मैंने बनाई थी, टू द पॉइंट थी, बट उसके अंदर थोड़ा सा चेंज करके और उसको थोड़ा सा और एक्सटेंसिव बनाकर आप अप्लाई कर सकते हो, प्रोफेसर्स को ईमेल भेज सकते हो। और हिम्मत ना हारना। स्टिल आई वाज हेल्पिंग सम ऑफ द पीपल जब मैं आ रहा था, एंड उनमें से भी कुछ लोगों का सीएससी भी हो गया, एंड एक का तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग शी इज रेडी टू गो फॉर आंसो मास्टर्स के अंदर, यूकास के अंदर उनका हो चुका है। सो दिस इज द थिंग, हिम्मत नहीं हारनी। और यस, चाइना के अलावा फॉर जापान यू कैन अप्लाई फॉर नेक्स्ट स्कॉलरशिप MEXT। उसके अंदर आपके पास ये होता है कि आपको प्रोफेसर को ईमेल तो करनी होती है। उस ईमेल के अंदर आप जस्ट उनसे ये कहते हो कि सर काइंडली जस्ट अलाउ मी कि मैं आपकी मास्टर्स में आपके गाइडेंस के अंडर करूं। उसके अंदर सिर्फ इजाजत लेनी होती है। एंड जब आप चाइनीज प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हो तो आप कहते हो कि सर काइंडली प्रोवाइड मी द रिकमेंडेशन लेटर। कि जब आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई कर रहे होते हो और जब आप सीएससी के पोर्टल पे अप्लाई कर रहे होते हो तो चाइनीज प्रोफेसर का रिकमेंडेशन लेटर इंपॉर्टेंट है। और जब आप जापान की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर से इजाजत मांगते हो। आप उनको आप ये नहीं कहते कि सर प्रोवाइड मी विद रिकमेंडेशन लेटर। ठीक है, ये जो नाम है नेक्स्ट स्कॉलरशिप, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर जापानीज स्कॉलरशिप, जापान के अंदर अगर आप जाना चाहते हो। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। क्योंकि आई वाज आल्सो हेल्पिंग वन ऑफ द स्टूडेंट फॉर नेक्स्ट स्कॉलरशिप, एंड आई गेस उनका होने वाला है। शी इज स्टिल वर्किंग। So this is the thing from my side, and over to you, Saifan. Let's move towards the Q&A session. If anyone have any question, you all are free to speak or send question in the inbox. Okay, let me see, guys. Can you show your CV or your personal statement which you got? Uh, okay, guys, let just wait for me. मुझे मेरी CV खोलनी पड़ेगी। हैरान मत होना, फॉर मी इट वाज अ वेरी मच डिटेल। मुझे एक एक चीज लिखनी पड़ी थी। तो मैं आपके लिए जस्ट अ मिनट, मुझे डॉक्यूमेंट खोलना पड़ेगा। और गाइस, अगर आप आ रहे हो खैर खैरियत से तो ज़रूर आओ, लाजमी आओ, एंड आई विल इनकरेज ऑल ऑफ यू। लेकिन एक छोटी सी एडवाइस दूंगा कि शियान जाओ के अंदर अप्लाई मत करना इस साल। जस्ट फॉर दिस ईयर आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा स्कॉलरशिप के अंदर कंपटीशन आ रहा है। दे आर रिड्यूसिंग द CSC स्कॉलरशिप एप्लीकेंट्स, एंड जो बेल्ट एंड रोड के ऊपर आ रहे हैं इस साल या आएंगे, उनका भी स्टाइपेंड कम हो रहा है। तो एज अ पर्सनल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू गाइस, शियान जाओ के अंदर अप्लाई मत करना जस्ट फॉर दिस ईयर। हाँ, 2027 के अंदर आपको लाजमी बता दूंगा जब उनकी एप्लीकेशन ओपन होगी। मैं उस हिसाब से फिर आपको लाजमी रिकमेंड करूंगा कि आप अप्लाई करो। लेकिन सेफर साइड के ऊपर यहाँ के किसी प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर जरूर ले लेना, जरूर ले लेना, क्योंकि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग काफ़ी अच्छी है और मैटर भी बहुत करती है। मेरे साथ एक वाकया हुआ था पर्सनली, अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो व्हेन आई वाज कमिंग, और मैं एयरपोर्ट पे था। तो एयरपोर्ट पे मेरे से उनकी जो फीमेल ऑफिसर है, पुलिस इंस्पेक्टर, शी asked me a question. She said like, okay, show me your why did you come for China? I said like, I came here for masters. And मैंने फिर she said like, okay, handle me the documents. मैंने उनको documents दिए, and in that document there was a pre-admission letter of Xi'an Jiaotong University. And जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि oh, Xi'an Jiaotong University, कहती हैं कि she was telling to me in English, she said like,
This is the dream of every 9 out of 10 Chinese to be and or to study in Shanjiao. So for me it was like that thing. अच्छा जी, मैं आपसे आपने मेरे से मांगी है एक मेरी सीवी। मैं एक उसको स्टॉप शेयरिंग करता हूँ और मैं एक और अपनी सीवी खोल देता हूँ आप लोगों के लिए। तो यूरोपास के ऊपर जाके गाइस अपनी सीवी बना लेना एंड इट्स वेरी गुड थिंग। वेयर इज माय सीवी? यस, देयर इज माय सीवी। मुझे बता देना कि इट्स बीइंग शोन। हो रही है तो बता दो, नहीं हो रही तो मुझे बताना। ओके, सो दिस इज हाउ एक यूरोपास की सीवी लगती है आपके पास फॉर्मेटिंग में। इट इज लाइक दिस थिंग, जिसके अंदर पहले पहले आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हो, फिर आप अबाउट मी का सेक्शन देते हो, फिर आप अपनी एजुकेशन देते हो। एजुकेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप अपनी मेंशन करते हो बैचलर्स की स्टडी को। आप ये नहीं मेंशन करते कि आपकी कॉलेज आपने यहाँ से किया हुआ है, आपने स्कूलिंग आपने यहाँ से की होती है, क्योंकि फॉर चाइना या इवन फॉर एनी स्कॉलरशिप जो कि आप बाहर के लिए अप्लाई कर रहे होते हो, वो सिर्फ आपकी बैचलर्स की एजुकेशन देख रहे होते हैं, आपकी मास्टर्स की देख रहे होते हैं, ठीक है। फिर आप अपना वर्क एक्सपीरियंस डालते हो। या तो आप डालते हो अपना वर्क एक्सपीरियंस जो अपने रिसेंट पोजीशन से आप स्टार्ट करते हो और आप सबसे पुरानी पोजीशन पे जाते हो, या इसके बरक्स होता है कि आप अपनी सबसे पुरानी पोजीशन से स्टार्ट करते हो और आप फिर लेटेस्ट पोजीशन पे आते हो। सो दिस इज माय सम ऑफ द वर्क एक्सपीरियंस। फिर इसके अंदर आपकी उसके बाद पब्लिकेशंस आती हैं। पब्लिकेशन के अंदर मैं आपको वही बताया था कि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप रिसर्च पेपर पब्लिश करो। ये जो मेरे पास दो पब्लिकेशन है, दीज आर माय न्यूज आर्टिकल्स। मैंने एक कुछ ओपिनियन आर्टिकल्स लिखे थे, तो आप अपने ओपिनियन आर्टिकल्स भी लिख सकते हो। उसके बाद आप प्रोजेक्ट्स अपने डाल सकते हो। प्रोजेक्ट के अंदर इस जो प्रोजेक्ट का सेक्शन होता है ना, इसके अंदर आप अपने डालते हो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को, या आपने वो प्रोजेक्ट जो कि आपने यूनिवर्सिटी के अंदर किया हो। आइदर इट कुड बी अ टीम प्रोजेक्ट, आइदर इट कुड बी योर सोलो प्रोजेक्ट, लेकिन आपका यूनिवर्सिटी के अंडर जो किया होता है। उसके बाद आपकी ऑनर्स एंड अवार्ड्स आते हैं। उसके अंदर भी आप अपनी ऑनर्स को डालते हो, आप अपने अवार्ड्स को डालते हो। फिर आपका जो आता है वो आता है आपका क्रिएटिव वर्क। अब ये जो क्रिएटिव वर्क होता है, ये आपका वो प्रोजेक्ट होता है जिसके अंदर आपने आइदर तो वो इंटरनेशनली किया होता है, या आइदर वो आपने अपने तय ही किया होगा, लेकिन उसका कम्युनिटी के ऊपर कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा, या आपकी यूनिवर्सिटी के थ्रू वो कोई ना कोई इम्पैक्ट जनरेट कर रही होगी, ठीक है। सो क्रिएटिव वर्क्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड इज ऑल्सो मैंडेटरी। उसके बाद आपका आता है वॉलंटियरिंग का। इसके अंदर आप बेशक वॉलंटियर आप बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन अपने 3 से 4 वॉलंटियरिंग के एक्सपीरियंसेस को डालते हो आप। इसके अंदर आप ज्यादा वॉलंटियरिंग के एक्सपीरियंसेस को मत डाला करो, ठीक है। मेजोरिटी जो चीज होती है। देन कम्स द सेक्शन ऑफ मेजर कोर्सेज। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसके अंदर आप अपने तमाम मेजर कोर्सेज को बता रहे होते हो जो कि आपने पढ़े होते हैं, एंड प्रोफेसर को आइडिया हो जाता है कि आपने कौन कौन से कोर्सेज पढ़ के आ रहे हो उसके पास, ठीक है। एंड इसी के थ्रू वो एक आपका बेसिक आइडिया लगा सकता है कि ओके, जो मेरे पास स्टूडेंट आ रहा है उसने क्या क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है, अपनी बैचलर्स के अंदर। आपने इसके अंदर माइनर कोर्सेज नहीं बताते। ये जो मैंने अभी कोर्सेज पढ़े हैं, दीज आर ऑल द मेजर कोर्सेज दैट आई स्टडीड इन बैचलर्स। उसके बाद आप अपनी प्रोफेशनल स्किल्स बताते हो। उसके बाद आप अपनी प्रोफेशनल स्किल्स बताने के बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी डालते हो। ये मैंने थोड़ा सा शायद नंबर चेंज हो गया, मैं इसको ठीक करूंगा अभी। देन कम्स योर फेलोशिप्स एंड प्रोग्राम्स। फेलोशिप और प्रोग्राम आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ फेलोशिप्स आपकी जो होती हैं वो फेलोशिप्स आर कंसिडर्ड एज सम ऑफ द थिंग दैट यू डिड एज इन टर्म्स ऑफ encouraging और properly working for community, ठीक है। या फिर आप एक तरीके से these could be termed as a some sort of social work, जो कि बाहर की यूनिवर्सिटीज मैटर करती हैं कि अच्छा, बंदा जो है या जो पर्सन है डिजायर, वो सिर्फ और सिर्फ वर्क इंटर्नशिप या अपना जो है वो फील्ड ओरिएंटेड नहीं था, उसने बाकी किसी कम्युनिटी के लिए या सोसाइटी के लिए भी कुछ किया था, ठीक है। तो ये भी आप चीज करते हो। देन कम्स योर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप फिर करते हो लैंग्वेज स्किल्स, जिसके अंदर मदर टंग एंड इंग्लिश वो आप बाकी बताते हो। सो दिस इज इट गाइस। आई गेस मैंने आपको अपनी सीवी दिखा दी है। कोई सवाल है अगर आपका मेरी सीवी से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हो। व्हाट काइंड ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर्स यू डिड। अच्छा, अगर मैं वैसे बताऊं तो आई वाज नॉट दैट मच ऑफ
वो गाय जो कहे कि मैं स्पोर्ट्स में अच्छा था या वैसे अच्छा था। मेरा जो करिकुलर का काम था वो यही था कि आई वाज वर्किंग विद यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशंस। मैं एसडीजीज इन्वायरमेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा था, कुछ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स रन कर रहा था, कुछ मैं फेलोशिप्स के थ्रू प्रोजेक्ट्स रन कर रहा था। कुछ जो प्रोजेक्ट्स थे वो मेरे बुराक एसोसिएशन के साथ मैं काम कर रहा था। एंड मैं मेरी मेरी थोड़ी सी पहली बात हो रही थी अभी इसी जुलाई के मंथ के अंदर, अराउंड 7th of July. It was my 4 years work anniversary with बुराक एसोसिएशन। सो इट्स लाइक मैं 4 साल से बुराक के साथ हूँ, एंड 4 साल से लेकर मैं अभी तक यहाँ तक आ गया। और मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ से कहाँ तक आ गया। एंड उस जगह से यहाँ तक आने में बुराक एसोसिएशन का भी एक बहुत अच्छा हाथ था कि एक तरीके से मैं कैंपस एम्बेसडर के तौर पे आया था। कैंपस एम्बेसडर के तौर पे आके फिर मैं अपग्रेड हुआ था। वहां से मैं इनकी कोर टीम मेंबर का हिस्सा बना था। टीम से उस टीम से जब मैं कोर टीम मेंबर का हिस्सा बना था सिंस 2023, द स्टार्ट ऑफ 2023। सो 2023 के स्टार्ट से आई गेस अब 2026 का हाफ हो चुके हैं, 3.5 साल हो चुके हैं। So I am the part of the core team, and I am managing all the projects that are in environment, climate change, sustainable development goals in whole Pakistan ड्रग एसोसिएशन के। एक्स्ट्रा करिकुलर या सुपर करिकुलर्स के अंदर ये देखो, यूथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्ट हो जाओ, फेलोशिप्स करो, एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट जरूर करो जिसके अंदर आपका प्रोजेक्ट, आपका इंटरेस्ट झलके। कि फॉर एग्जांपल मेरा जो इंटरेस्ट है वो क्लाइमेट एजुकेशन है, वो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, तो मैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन के ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स करूंगा। आप लोगों का इंटरेस्ट ये हो सकता है कि आप एक सर्वे बेस्ड स्टडी कर सकते हो, आप एक क्वालिटेटिव रिसर्च कर सकते हो, आप एक क्वांटिटेटिव रिसर्च कर सकते हो, आप इंटर्नशिप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर सकते हो, या आप कोई अच्छी फेलोशिप कर सकते हो, ठीक है, जिसके थ्रू आपको एक फायदा हो रहा है। तो दीज शुड बी योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अगर फिर एक है, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म करियर एंड फाइनेंशियल एडवांटेजेस ऑफ परस्यूइंग एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री अब्रॉड वर्सेज वेटिंग फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। अच्छा, अंडर ग्रेजुएट डिग्री के अंदर अगर आप करना चाहोगे, फायदा तो एज सच जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया, जहां तक मैंने सुना है लोगों से, वो ये है कि समटाइम इट कुड बी गुड, समटाइम इट कुड बी नॉट गुड। एक केस स्टडी थी, एक केस था, आई डोंट नो, बहुत ही क्लोज मेरे एक दोस्त हैं, उनके कोलीग्स गए हुए थे बैचलर्स के लिए बाहर तुर्की पढ़ने, एंड दे वर वेरी रिच, एंड उनके they decided like they should have their bachelor's degree from Turkey. जब वो वापस आए हैं and my friend asked them कि how was your experience, तो she both said like हम लोगों ने एक तरीके से कुछ पढ़ा नहीं, हम लोगों ने एक तरीके से कुछ सीखा नहीं, हम लोगों ने पार्टिंग में, हम लोगों ने एक्सप्लोरिंग में, हम लोगों ने जो अपना पूरा का पूरा टेन्योर था पढ़ने वाला वो जाया कर दिया। सो वी डिड नॉट लर्न दैट मच। हम लोग जो जा रहे थे बाहर वो खाना पूरी थी, ये उनके अल्फाज थे। सो दिस इज द थिंग, दिस इज अ 50% थिंग। लेकिन जो अगर आप 50% है वो ये है कि अगर आप बाहर जाते हो तो आपको एक तो इंटर्नशिप बहुत अच्छी मिलती है, इंटर्नशिप्स के साथ आपको स्कॉलरशिप अच्छा मिलता है। अगर आपको स्कॉलरशिप अच्छा नहीं मिल रहा होता तो आप पार्ट टाइम भी काम करके अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग तरीके से सर्वाइव कर सकते हो उस कंट्री के अंदर। और अंडर ग्रेजुएट की डिग्री बाहर मैटर करती है, बाहर भी मैटर करेगी, पाकिस्तान में मैटर करेगी एज कम्पेयर टू दिस। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके से। आप एक तरीके से ऐसे पर्सन हो जो कि ज्यादा पार्टी लवर है, कि आप एक तरीके से ऐसे पर्सन हो जो कि ये कहते हैं कि यार नहीं, मैं ये 3 से 4 साल या मैक्सिमम 5 से 6 साल की मेहनत कर लूंगा, लेकिन 5 से 6 साल की मेहनत के बाद मेरा जो फ्यूचर है वो ज्यादा स्टेबल होगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है गाइस। ये मेरा एक मशवरा है आप लोगों के लिए। अच्छा, मैं देख लेता हूँ सर, बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर फार्मासिस्ट देयर। फार्मेसी के लिए शियान जातोंग है, शियान जातोंग के अलावा आपकी C9 की सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। C9 की यूनिवर्सिटीज़ के अलावा एक यूनिवर्सिटी है ख्वाजोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक, इसका काम मेडिकल के ऊपर ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी अप्लाई करो। शियान जातोंग यूनिवर्सिटी में आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगा, आप इधर भी आ सकते हो, क्योंकि इनका एक पूरा का पूरा कैंपस है यंता कैंपस, शियान जातोंग यूनिवर्सिटी यंता कैंपस, जो कि पूरा मेडिसिन से ही है। उसके अंदर जीन्स के ऊपर काम हो रहा है, उसके अंदर फार्मेसी के ऊपर काम हो रहा है, उसके अंदर MBBS के ऊपर लाइक मेडिसिन डेंटिस्ट्री के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। सो फॉर मिस सैयदा अरीबा राशिद, आपका ये फार्मेसी के सवाल के लिए ये यूनिवर्सिटी का नाम है, इधर भी आप अप्लाई कर सकते हो। सी मैंने दिखा दी है, मेडिसिन के लिए भी मैंने वही नाम दे दिया आपके लिए। MSc इन साइकोलॉजी के लिए
वो आप तो बहुत अच्छी हैं, एक तरीके से आप अच्छा काम कर रही हैं, साइकोलॉजी पढ़ रही हैं. इट वाज माय सेकंड प्रायोरिटी इन कायदे आजम, बट सैडली आई वाजंट सिलेक्टेड. लेकिन क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस में मैं सेलेक्ट हो गया था, सो इट इज माय वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस एज वेल. हाउ टू गेट अ स्कॉलरशिप फॉर एलएलएम विद बैचलर्स इन लॉ विद एनुअल सिस्टम फ्रॉम पीयू. वही बात है कि आप सबसे पहले एक तरीके से जो है सुपरवाइजर ढूंढोगे, सुपरवाइजर को ढूंढ के ईमेल करोगे और सुपरवाइजर से रिकमेंडेशन लेटर मांगोगे. रिकमेंडेशन लेटर जब आपको मिल जाएगा, फिर आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करोगे और आप फिर सीएससी के पोर्टल पे अप्लाई करोगे. एंड दोनों के पोर्टल के पे अप्लाई करने के बाद आप रिजल्ट का वेट करोगे. रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट जो आएगा वो आपका प्री एडमिशन लेटर के साथ आता है. उसके बाद आता है व्हाट चैनल और सोर्सेज वी शुड ट्रैक to be up to date on different universities. Most of the times universities or channels claim to have the right date, but they don't. गाइस, इंस्टाग्राम तो हर किसी के पास है, हर यूनिवर्सिटी का एक इंस्टाग्राम पेज बना हुआ है, उसको फॉलो कर लो. उसके अंदर आपके पास ब्रोशर्स आते हैं, उसके अंदर आपके पास डेट्स आती हैं, उसके अंदर आपके पास उनकी यूनिवर्सिटीज की कैटेगरीज आती है. हर यूनिवर्सिटी का एक स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन है या इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आईएसओ के नाम से. ठीक है, SI स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन या इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन. वो जो इदारा है, वो जो एजेंसी है उस यूनिवर्सिटी की, वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स को प्रॉपर्ली आगाह करे कि ब्रोशर्स लॉन्च हो चुके हैं, एडमिशन ओपन हो चुके हैं, ये स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं, ये लास्ट डेडलाइन है डेट की. इस तरीके से आप आ सकते हो. सो उसको इंस्टाग्राम के ऊपर तो आप फॉलो कर सकते हो गाइस, इवन इफ दे नॉट हैव लिंक्डइन. लेकिन इसके लिए भी मैं इंशाल्लाह आई विल सजेस्ट, आई विल टॉक विद माय टीम एंड हम लोग एक व्हाट्सएप कम्युनिटी क्रिएट कर लेंगे जिसके अंदर हम लोग आपको ये प्रोवाइड कर सकें. उसके बाद आता है मिस आयशा का कि फॉर लॉ चाइना कैसा है, काइंडली थोड़ा सा गाइड कर दें. अच्छा, शानजाओ के अंदर जो लॉ है, एलएलएम हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आई गेस बिजनेस रिलेटेड केसेस के अंदर हो रहा है. या एक और मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो एलएलएम के जो इनके प्रोफेसर हैं वो एक और ओरिएंटेड केसेस के अंदर स्पेशलाइजेशन रखते हैं. सो हर यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास जो एलएलएम की स्पेशलाइजेशन होगी वो एक खास कैटेगरी के अंदर होगी एलएलएम की, तो उसके हिसाब से भी आप अप्लाई कर सकते हो. और वही बात है कि सबसे पहले आप फोकस करते हो रिकमेंडेशन लेटर लेने के ऊपर. रिकमेंडेशन लेटर मिल गया तो आपका 90% काम हो गया. उसके बाद जस्ट आपने अप्लाई करना होता है. सो मेजर थिंग इज रिकमेंडेशन. रिकमेंडेशन के बाद आपका इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद आपका रिजल्ट, लाइक एप्लीकेशन प्रोसेस. और क्या है, डिग्री में ही क्या चीज करनी चाहिए? इंटर्नशिप्स करें, डिफरेंट सोसाइटीज को भी ज्वाइन कर सकते हो. लॉ के हिसाब से मूड कोर्ट्स होती हैं, मूड कोर्ट्स कर सकते हो आप. मूड कोर्ट्स के अंदर काफी अच्छा आप एक तरीके से अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हो. उसके अलावा आप डिफरेंट केस स्टडीज कर सकते हो और एक तरीके से डिफरेंट सोसाइटीज ऑर्गेनाइज करो, ज्वाइन करो, बहुत अच्छा हो जाएगा. कंपटीशंस के अंदर आप बेशक एक तरीके से आप एमयू मंस कर लो, एमयू जो होती है मॉडल यूनाइटेड नेशंस, आप पोस्टर कंपटीशन कर लो. इट कुड बी एनीथिंग जो कि आपकी हॉबी या आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो. सर, डूइंग एमएस इन सोशल साइंसेस फ्रॉम चाइना, व्हाट डू यू थिंक? सो सोशल साइंस चाइना से करना, इट्स अ रियली गुड थिंग. अप्लाई जरूर करो. मैं ये नहीं कहूंगा कि अप्लाई ना करो, अप्लाई जरूर करो, क्योंकि यहाँ से जब आप निकलते हो तो एज कम्पेयर टू पाकिस्तान आपको जॉब प्लेसमेंट, अगर लाइक लेट्स सपोज पाकिस्तान के अंदर आपको जो आप मास्टर्स कर रहे हो तो आपको जॉब प्लेसमेंट के जो चांसेस आप यहाँ तक हैं, तो जब चाइना से ग्रेजुएट करके निकलोगे मास्टर्स या पीएचडी के अंदर तो आपकी जॉब प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ तक आ जाएगी, चांसेस. तो यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ चाइना है, डिफरेंस देख रहे हो? तो इसके अंदर फिर आपके पास ये हो जाएगा कि टाइम ड्यूरेशन के, शॉर्टर टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपके पास जॉब लग जाती है एंड अच्छी जॉब प्लेसमेंट होती है. उसके बाद ये है कि कुड यू टेल, मैंने आपको बता दिया एक्स्ट्रा करिकुलर्स व्हाट आर द लॉन्ग टर्म, में भी मैंने बता दिया. सो बेसिकली वी शुड डू मोर सुपर करिकुलर्स. आई शुड रादर से कि इसको ना आप मिक्स लेके चलो. आप एक्स्ट्रा करिकुलर सुपर करिकुलर्स भी लेके चलो और आप फोकस भी रखो अपनी सीजीपी के ऊपर एंड साथ ही साथ इंटर्नशिप और थोड़ा सा रिसर्च या एक तरीके से थोड़ी सी रिसर्च स्किल्स को भी एनहांस कर लो. How to find extracurricular activities for those students who are from small cities? Why don't you guys join online? Online भी तो join करते हैं ना organizations को, different organizations को. If you guys और हर organization का, if I'm not wrong, तो किसी ना किसी तरीके से वो small cities के अंदर उनका कोई chapter होता है. अगर नहीं है तो you may join Burak Association. I guess we are running in 43 cities और हम आप लोगों के थ्रू बढ़ाना चाहते हैं इस पूरे के पूरे स्केल को, जिसके थ्रू यू गाइस विल बी द रिप्रेजेंटेटिव्स. आप अप्लाई कर सकते हो.
आप वही जिस तरीके से मैं आया था, यू गाइस कैन बी द कैंपस एम्बेसडर्स, देन आपकी प्रमोशन हो गई, एंड देन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप एक तरीके से ये एक अच्छी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो सकती है। स्मॉल सिटी के अंदर अपना लोहा मनवाना आसान है एज कम्पेयर टू द दो सिटीज जहाँ पे आपके पास एक बहुत अच्छा कंपटीशन है, एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है। बेस्ट यूनिवर्सिटीज फॉर लॉ, आई वुड रादर से जस्ट टाइप C9 लीग यूनिवर्सिटीज, एंड C9 लीग यूनिवर्सिटीज के साथ आप टाइप करना वुहान यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये टॉप 10 यूनिवर्सिटीज आपके पास आ जाएंगी। मिस आयशा सरफराज आपने कहा था, यस मिस ईशा फॉर LLM, शियान जोतोंग भी अच्छी है और बाकी भी अच्छी है। एनी कंसल्टेंसी एजेंसी रिकमेंड फॉर एडमिशन, करना ही क्यों है, पैसे क्यों देना चाहते हो आप लोग आए, जब आप फ्री में कर सकते हो। मैंने जब फ्री में किया है, मैंने किसी को पैसे नहीं दिए, किसी किसी को ना मैंने एडमिशन के पैसे दिए हैं, किसी को मैंने कंसल्टेंसी के पैसे दिए, तो करना क्यों है, पैसे क्यों देने हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लो, पैसे क्यों क्यों लगाने हैं। वही जो पैसे आपने 1,20,000 1,60,000 किसी कंसल्टेंट को देने हैं, जब वही पैसे आपके ऊपर लगेंगे, आपकी फ्लाइट टिकट के अंदर लग सकते हैं, या आपकी शॉपिंग के अंदर लग सकते हैं, या आपके किसी खाने पीने की किसी चीज के अंदर लग सकते हैं, वो आप कंसल्टेंसी को देकर क्यों कर सकते, क्यों देना चाहते हो, कि यही कि वो आपको स्कॉलरशिप लगवा देगा। आप एक थोड़े से ज्यादा टाइम के अंदर आप थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर लो, तो वो आपका पैसा बच सकता है, वो आपका किसी अच्छे काम के लिए लग सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए, कंसल्टेंट्स आपको दे देंगे जो एक तरीके से एडमिशन लेटर दे देंगे, लेकिन करना ही क्यों है आपको, वो चीज लगानी ही क्यों है। या तो अगर आपका बहुत बहुत ज्यादा पैसा है गाइस, तो आप जरूर दो, मैं आपको नहीं रोकूंगा। लेकिन इफ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, या इवन लाइक द लो इनकम क्लास या अपर मिडिल क्लास, तो आई वुड रादर से कि वो पैसा आपका किसी अच्छे काम के लिए लग सकता है, तो उस पैसे को बचा के रखो और लग जाओ ईमेल करने पे। मैं ईमेल का फॉर्मेट शेयर कर दूंगा साइफान के साथ, एंड साइफान आपको शेयर कर देगा, डोंट वरी, ठीक है। और you said it is good for engineering student to go for PhD, is it not recommended to go for masters? oh so same है मिस कश्यप, आप एक तरीके से PhD आप मास्टर्स भी कर सकते हो, आप PhD भी कर सकते हो। चाइना के अंदर दो तरीके से आप आ सकते हो, एक आपका होता है कि क्या कहते हैं, आप पहले मास्टर्स करते हो, फिर मास्टर्स के बाद आप अप्लाई करते हो PhD के लिए दोबारा। एक आपके पास एक और चीज होती है जिसके अंदर होता है मास्टर्स लीडिंग टू PhD, वो आपका डायरेक्ट 5 साल का प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर आपको मास्टर्स भी पहले आप करते हो, लेकिन मास्टर की डिग्री के साथ साथ आप PhD भी कर रहे होते हो। So this is the thing. Can you share your phone number so we can contact you? Okay, don't worry, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। यस मेरी टीम आपके साथ शेयर कर देगी। मैं शेयर कर दूंगा, मेरी टीम भी शेयर कर देगी आपके साथ, डोंट वरी। बल्कि अभी कर देते हैं। और गाइस मैं पहले बता रहा हूँ, देरी के लिए रिप्लाई देर से आने में थोड़ी सी माजरत, क्योंकि राइट नाउ आई एम जस्ट कंक्लूडिंग माई सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि मैंने नेक्स्ट वीक पाकिस्तान के लिए निकलना है, तो थोड़ा सा देरी के अंदर माजरत अगर मेरा रिप्लाई लेट आए, लेकिन ये मत समझना कि मैं आपके मैसेज को तरखा रहा हूँ। मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा, लेकिन देरी आ सकती है, क्योंकि राइट नाउ मैं एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हूँ, मैं पैकिंग भी कर रहा हूँ, सो फॉर मी इट्स अ बिग थिंग। और यस मैं थोड़ा सा बुरा के भी कामों में थोड़ा सा बिजी हूँ। अच्छा, सो अब इसके अलावा कोई सवाल? एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर आपको बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे। शियान के अंदर भी है, शियान जाताओंग, शिंगवा में अप्लाई करें, फूडान में अप्लाई करें, पीकिंग में अप्लाई करें, जेजियांग में अप्लाई करें, जंगजू यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, यूएसटीसी में अप्लाई करो। यूएसटीसी में बेशक आप एक तरीके से सीएसई के लिए अप्लाई करो या आंसो में अप्लाई करो, बोथ आपके लिए काफी अच्छे हैं। ये यूएसटीसी ग्लोबली 148 इसकी रैंकिंग है, अच्छी रैंकिंग है, और चाइना में टॉप 5 पे आती है। कैन यू टेल अबाउट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, व्हाट आर सम ऑफ द बेस्ट यूनिज? मिस माहिदा, हर प्रोफेशन के लिए C9 लीग इज द बेस्ट। उसके अलावा आप एक तरीके से C9 लीग के अलावा आप जस्ट ये सर्च करें कि बेस्ट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज अपार्ट फ्रॉम C9 लीग, तो आपके पास वो आ जाएगा गूगल के ऊपर कि कौन कौन सी है। लेकिन C9 लीग हर प्रोफेशन के लिए बेस्ट है, क्योंकि C9 लीग की यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको हर प्रोफेशन मिलेगा। और अगर इनमें आपकी प्लेसमेंट हो जाती है C9 लीग के साथ, आप वुहान यूनिवर्सिटी में भी देखना। एक मिनट, वो हाँ एक मिनट,
C9 के साथ वुहान यूनिवर्सिटी भी देखिएगा, इन 10 यूनिवर्सिटीज के अंदर आपकी प्लेसमेंट हो जाती है। अगर तो आइट्स या टॉफल किया हुआ इट्स गुड। शिंगुआ में भी अप्लाई हो सकता है गाइस। शिंगुआ इज द नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन चाइना। मेरा वैसे मेरा भी पीएचडी का इरादा है, साथ ही साथ मैं देखूंगा जॉब का भी। लेकिन लेट्स सपोज खुदा ना ख्वास्ता अगर मेरी जॉब नहीं होती, जॉब प्लेसमेंट नहीं होती, तो आई विल गो डायरेक्टली फॉर शिंगुआ फॉर माई पीएचडी। क्योंकि एक तो टॉप 31 ग्लोबली उसकी रैंकिंग है, चाइना में नंबर 1 है। तो आप ये देख लो कि उसके पास वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कितने अच्छे होंगे, फैकल्टी कितनी अच्छी होगी, और आफ्टर हैविंग लाइक लेट्स सपोज पीएचडी या मास्टर्स फ्रॉम शिंगुआ, फुडान, शंघाई जियोटोंग या बाकी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से आपकी प्लेसमेंट कितनी अच्छी हो सकती है। और ये मत समझना कि C9 लीग यूनिवर्सिटीज के अंदर या वुहान यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद बस खत्म हो गया, मैं अब और किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई ना करूं। बाकी यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करना। बाकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे तो आपकी जो होता है ना, क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस रेट, वो भी आपको अच्छा मिलेगा। अपना जो कहते हैं ना कि अपना जो दिल है वो लूज इस तरीके से करना कि C9 लीग के अंदर नहीं हुआ, बाकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो। मशवरा मैं ये दे सकता हूँ कि आप लोगों के लिए बाकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, वहां से मास्टर करो 2 साल का, फिर पीएचडी के लिए अप्लाई करो इन C9 लीग की यूनिवर्सिटीज के अंदर। एक दफा अगर आप चाइना में आ गए हो, बेशक आप चाइना की किसी भी यूनिवर्सिटी में आ गए और आप सीएससी पे आए हो फॉर मास्टर्स, पीएचडी के अंदर जब आप चाइना से ही अप्लाई करोगे फॉर दीज C9 लीग यूनिवर्सिटीज, आपका डायरेक्टली पीएचडी में हो जाता है। ये प्लस पॉइंट है हर उस स्टूडेंट के लिए जो चाइना आता है और किसी भी बेशक Tier 1 Tier 2 की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा होता है, पढ़ रहा होता है, एंड जैसे ही वो पीएचडी में अप्लाई करता है फॉर द C9 लीग यूनिवर्सिटी, उनका उनका हो जाता है, उनका आसानी से हो जाता है। और आंसो बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव है, लेकिन आंसो को ये मत समझना कि आंसो एक तरीके से मेरा नहीं हो सकता। आपका जरूर हो सकता है, आपके पास कैलिबर है, आप काम कर सकते हो और आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। जब मैं अप्लाई कर रहा था, मुझे लिटरली मुझे नहीं पता था कि आंसो भी एक स्कॉलरशिप है जो कि एग्जिस्ट करती है। अगर मुझे पता होता तो मैं आंसो में भी मास्टर्स के लिए अप्लाई करता। लिटरली ये मुझे थोड़े अर्से पहले आगे पता चला कि आंसो मास्टर्स के लिए भी है। तो ये चीज है गाइस, वरना मुझे जस्ट ये पता था कि आंसर जो है वो सिर्फ पीएचडी के लिए। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, देखो, ईमेल करो, और बस ये चीज़ है। और अक्टूबर से आपके पास सीएससी की एप्लीकेंट्स खुलना स्टार्ट हो जाती हैं। अक्टूबर से पहले लेट्स सपोज अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को अच्छा कर देते हो, मोटिवेशन लेटर, रिसर्च प्रपोजल, सीवी, ये 3 चीज़ें हैं जो भी आपकी मैटर करती हैं, इसको अच्छा कर लेते हो, ईमेल बॉडी को अच्छा कर लेते हो, सो व्हाट इज लेफ्ट, आप अक्टूबर के अंदर अप्लाई करते हो, ईमेल करना स्टार्ट करते हो, लेट सपोज नवंबर तक आपको ईमेल का रिस्पॉन्स आता है। उनमें से आपके पास 3 से 4 प्रोफेसर राजी होते हैं कि लेट सपोज कि हम इसको देते हैं रिकमेंडेशन लेटर आ गया। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो। तो 3 से 4 यूनिवर्सिटीज की आपके पास ऑप्शन होगी, आप देखोगे, उसकी रैंकिंग देखोगे, आप प्रोफेसर की कैपेबिलिटी देखोगे, देन आप अप्लाई कर दो, आपको कोई नहीं रोकेगा। और एक प्लस पॉइंट, जब आप अप्लाई कर रहे होगे आफ्टर योर रिकमेंडेशन लेटर, एक जीमेल के ऊपर आप एक ही सीएससी की एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हो एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर। तो लेट सपोज आपके पास 3 से 4 एप्लीकेशन लेटर आए और आप 3 से चारों यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहते हो, तो हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आप एक डिफरेंट जीमेल बनाना और फिर अप्लाई करना। ये चीज़ है सीएससी में अप्लाई करने के लिए जब आप पाकिस्तान से आते हो। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की हमारे पास यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फ़ी होती है, जिसके अंदर पीकेआर के अंदर इट इज़ अराउंड 30,000 और 16,000। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ की होती है एज कम्पेयर टू ऑल द यूनिवर्सिटीज़ इन चाइना। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी की, मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ की नहीं होती। तो आप देखना, आप दोनों तरीके से अप्लाई करना, लक के ऊपर बात है। आप 2 या 1 यूनिवर्सिटी को टारगेट करना जो कि जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन फी भी आती है, और मेजॉरिटी बाकी यूनिवर्सिटीज को बेशक आप टारगेट करना जहाँ पे आपके पास रजिस्ट्रेशन फी 0 है। ठीक है, बाकी जो सवाल पूछोगे, जैसे पूछोगे, आई विल आंसर, माय टीम विल गाइड ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह। और आई वुड लव टू सी यू ऑल, अगर आप लोग चाइना में आते हो, या आई वुड लव टू सिट विद ऑल ऑफ यू if you would be in Lahore or in Islamabad, because I will visit Lahore and Islamabad both.
I would have some work and I have some relatives as well. तो मैं भी आप सबसे मिलना चाहूँगा. So कोई सवाल अगर नहीं है तो then I would be giving the floor to the team and they will be concluding today's session. If there are no further questions, we officially conclude today's session. Thank you, Sir Daniel, for such an insightful session on studying in China and scholarship opportunity. We truly appreciate your time and the valuable knowledge you shared. I'm sure our participants found today's session extremely valuable. Thank you so much, everyone who joined us and participate actively. We hope the session has answered many of your questions and inspire you to explore new opportunities for higher education. We hope to see you in our upcoming session. Till then, Allah Hafiz.